Hi everyone, welcome back to our YouTube channel. We will be starting a target cat marathon videos. Like it will be a sequel of videos where we will be discussing, where we will be basically taking out each section: arithmetic, algebra, geometry, and modern maths. We'll be taking 20 questions each. Um and these won't be just random questions. This will be the most important questions. Those are like the concepts which are coming regularly in the last 3 to 4 years. So we have picked out certain types of questions, and I want you all to practice these questions alongside me. So I will. So those who are watching the video, there is a instruction for you. जो भी मतलब जो भी क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे लाऊंगा, like I will be bringing one question at a time. You will have to just pause the video, try it out on your own for 3 minutes. You should keep a timer of 3 minutes because now only 20 days are left for cat. So you have to give a time bound test, correct? Like you have to do a time bound practice. So इसलिए whatever question I will be putting on the screen, sequel wise, you should pause the video, try for 3 minutes, and then head on to see the solution that I will be providing. Okay, let's start. Let's start with the first question. So here is the first question on your screen. Pause the video, try for 3 minutes, and then proceed with the solution. Okay. So the question says Vikram takes a loan of 4 lakhs from a bank at an interest of 10%. Okay. So just see how I am writing, how I am denoting each number. This 4 and 00000. I won't be writing that many zeros in exam. What I will be doing is writing like this 4L. This saves time. These all small things, now just note whatever I will be doing while I am solving it. So this will eventually help you. Vikram takes a loan of 4 lakhs from a bank at an interest rate of 10% per annum compounded annually. Okay, so 10% per annum and compounded annually. So it is compound interest. At the end of the first year, he repays 1,40,000. Okay, at the end of the first year, how many years are there? Basically, 3,69,000 at the end of the third year. Okay, so it is a kind of installment type question. So I will be put the timelines. So all such kind of questions, now I always put a timeline so that I am visually very strong, that what I am writing, it should be like I should have a good visual understanding of it. Correct? So he basically takes a loan. At the end of the first year, he repays 1.4 lakhs. So I will write 1.4 lakhs. Okay. At the end of the second year, just before the interest for the third year is calculated, the bank revises the interest rate for all existing borrowers. So पहले 10% ही था, अभी क्या हो गया, चेंज हो गया होगा. ठीक है. So ये ईयर तक ये 1.4 lakhs जो हुआ वो 10% पे ही चला. ठीक, ये 10% पे ही चला. ये जो 4 lakhs का लोन लिया था वो पहले साल कितना चला, 10% पे ही. नेक्स्ट ईयर भी कितने में चला, 10% पे. अब जो नेक्स्ट ईयर है वो मेरे को दिया नहीं गया है. एंड विक्रम पेज अ फाइनल अमाउंट ऑफ 3.696 lakhs. 3.696 lakhs at the end of the third year to clear his entire loan. What was the revised annual interest rate for third year? ठीक है, मैंने सब नोट डाउन कर लिया. क्या क्या नोट डाउन करने का था कि 4 lakhs का लोन पहले लिया था. सो दैट हैज 10% कंपाउंड 10% इंटरेस्ट इन द फर्स्ट ईयर. Let's denote the years 1, 2, and 3. This is 0th year. Okay, when he takes the loan. So after the end of the first year, उस जो 0 to 1 पीरियड है वहां पे 10% का इंटरेस्ट लगा है. देन 1 to 2 फर्स्ट टू सेकेंड ईयर का जो ड्यूरेशन है वहां पे भी 10% का लगा है. बट सेकेंड से थर्ड का मेरे को पता नहीं है, सो आई एम टेकिंग एक्स. ठीक है. अब just note how I am solving this question. So after the end of first year, so basically this 4 lakhs, I will write the equation like this now. Ki 4 lakhs has gone for one, like there is a jump of 10% interest. So for 2 years, so 1.1 whole square. Correct? For 2 years compound interest. Everyone knows the formula, correct? I hope everyone is fine with that. Okay. And next, for the third year, then I have to do another time. I won't write 1 plus x by 100. This will become a nasty equation. So what I do usually is I replace x with x dash, or just write x. ठीक? I just write x. So why I'm doing just this? Because I don't want a
like fraction kind of value. I will find out the value of x and then just at the end multiply by 100. That's it. Okay. So this should be equal to, now he had given an installment of 1.4 lakhs at the end of 1 year. So this value after the end of second year, what will its value will be? It will increase by 10%. Correct. जो इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं वो भी तो 10% वो भी तो इंक्रीमेंट होगा ना. सेम लाइक लोन जैसे इंक्रीमेंट हो रहा है 10% का, वैसे इंस्टॉलमेंट जो है उसका भी वैल्यू मेरे को निकालना पड़ेगा एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर. Correct. So this will be 1.4 lakhs into 1.1, and this second to third jump I don't know, so I will put 1 plus x, same like this, same like this. Correct. And another installment he has put, this is 3.696 lakhs. ठीक. This is the entire equation बन गया installment questions का. Entire equation बन गया. I hope everyone is clear with this. बस इसको solve कर लो अब. So this is 1.21. So 4 lakhs into 1.21 is 4.84 lakhs into 1 plus x. This is 1.4 into 1.1, which is 1.54 lakhs into 1 plus x plus 3.696 lakhs. Okay. So this becomes 4.84 lakhs. So I'll just use the calculator. So 4.84 minus 1.54, which will be 3.3 lakhs. Correct. So 3.3 lakhs plus 4.84 minus 1.54 again. So 3.3 L lakhs x. This will be equal to 3.696 L. So I will cancel out all the L's now. I don't require the L's. So x will be 3.696 minus 3.3. 3.696 minus 3.3 divided by 3.3. So this will be, x will come out to be 0.12. So this is not the interest percentage. This is just the fractional value. That is x by 100. I have to, first I told now, I am taking x by 100 as x only. So since x came as 0.12, so percentage interest will be 0.12 into 100. I will just multiply by 100 at the end. Okay. So this becomes 12%. So answer is option B. So यहाँ पे क्या क्या नोट डाउन करना है आप लोगों को कि मैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि मैं पहले टाइमलाइन ड्रॉ कर लिया. इंस्टॉलमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में क्या करता हूँ, मैं टाइमलाइन ड्रॉ कर लेता हूँ. टाइमलाइन ड्रॉ करने से क्या होता है कि मैं विजुअली आई एम वेरी मच परफेक्ट एट व्हाट आई एम डूइंग. ठीक. देन मैं एक और चीज क्या किया कि x बाई 100 को x बाई 100 ना लिख के आई एम राइटिंग इट एट x. वाई? क्योंकि मैं लास्ट में फिर मल्टीप्लाई बाई 100 करके डायरेक्टली निकाल सकता हूँ. आई डोंट वांट टू डील विथ फ्रैक्शंस, कि जहाँ पे फालतू का वैल्यूज से डील नहीं करना पड़ेगा. ठीक. जहां जहां हम लोग फ्रैक्शंस अवॉइड कर सकते हैं वहां पे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कैट एग्जाम में काफी ये भी रहता है, प्रेशर रहता है. सो जितना कैलकुलेशंस लेस कॉम्प्लेक्स होगा उतना ही एक्यूरेसी हाई होने का चांसेस बढ़ेगा. ओके. ओके, एवरीवन इज क्लियर विद दिस? लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट वन. Okay, like the same process, everyone try for 3 minutes, then see the solution. Okay. Okay, let's see the question. On 17 August 2024, a production plant produced A units of model X and B units of model Y. Okay, so they are producing X, like A units of model X and B units of sorry, X unit A units of model X and B units of model Y. Okay, during a single day. The daily production satisfies the relation. Now they have given a relation 16A plus 8B equal to AB plus 96. Okay. ठीक है. And also they have given the range of A. So A will lie only between A to 6. ठीक. क्लियर है यहाँ तक सबको क्वेश्चन? नेक्स्ट क्या बोल रहा है? द नेट प्रॉफिट अंडर फॉर द नेट प्रॉफिट पर यूनिट फॉर मॉडल एक्स इज 4 lakhs एंड फॉर मॉडल वाई इज 2 lakhs. ओके. मतलब एक यूनिट ऑफ एक्स में दे विल हैव अ प्रॉफिट ऑफ 4 lakhs एंड एक यूनिट ऑफ वाई में दे विल हैव अ प्रॉफिट ऑफ 2 lakhs. ठीक है. व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट द प्लांट कुड हैव अर्न दैट डे? ठीक है. तो मेरे को बेसिकली देखना है मैक्सिमम, लाइक बेसिकली मैक्सिमा का क्वेश्चन है. सो आई हैव टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. सो ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करना है हम लोग को? इक्वेशन से स्टार्ट करना पड़ेगा, ऑब्वियस है. और कहीं पर दिख नहीं रहा जहां से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को. तो लेट्स स्टार्ट विद द इक्वेशन. 16A प्लस 8B इज AB प्लस 96. ठीक है. सो
I can rearrange it like this. 16a uh, plus 8b minus ab minus 96, that is equal to 0. So if I pick out this 16a and here, so I get, if I pick out a, so this is 16 minus a, correct? Now I need another 16 minus a from this side. If I pick b, then sorry, if I pick 8, then it should be, sorry, uh, sorry, it is 16 minus b, right? Yes, it is 16 minus b. Okay, let me just revise it. Yes, I will just pick out a. So this is 16 minus b from these two equations. And what I will do is put this 96 as 128. Just see why I am doing it. If I pick out 8, then if in order to have this as b minus 16 or 16 minus b, or yes, or I can directly write minus 8 and this put as 16 minus b. ठीक? So what I am doing extra is minus 8 into 16, minus 8 into 16. What is the value of minus 8 into 16? This is minus 128, correct? But I have only minus 96. So on the left hand side, so sorry, on the right hand side, I have to add another minus 32. Everyone clear with that? Everyone clear with that? So I have to add another minus 32 on the right hand side, because on the left hand side, in order to match both these, I have done an extra, I have added an extra minus 32. Correct? Now I can easily take a common, that is 16 minus b. If I take common, so this becomes a minus 8, which is nothing but minus 32. Now I will just put like this, 16 minus b into 8 minus a, because I'm taking negative this side, so I'm making it positive. Okay. So this is the equation I got. This is the equation I'm getting over here. Everyone clear with this? This is the equation I got from here. Now I will use this range. I will use this range. कहाँ के a का वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रहा है? 0 से 6 तक. So I will just put it and see which one fits and where do we. And one more thing, a and b both should be integers. Why is that? Because it has been told a units of model x, b units of model y. b units और a units कभी fraction हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता. They have to be integers. Correct? Okay then. So let's put a equal to 6. If I put a equal to 6 in this equation, this is 16 minus b into 8 minus a, which is 2. There's 32. So this cuts, this is 16. So b ka value is 0. So a, when a is 6, so first values I got, which is a equal to 6 and b equal to 0. So what is the profit from here? Profit will be, for each unit of a, they are getting 4 lakhs ka profit. So 4 into 6, and b is obviously 0. So this is 0. So 24 lakhs profit will come from this equation, from this combination. From a equal to 6 and b equal to 0, we will get this combination. Okay. Now let's move to the next one. Oh, sorry. Now let's see which all values are there next. Okay. So now I will put a equal to 5. If I put a equal to 5, I'm not writing. I want you guys to think, because you have to do fast in the exam. You have to let your mind think of this whole thing. If I put a equal to 5, what this value becomes? 8 minus a becomes 3. Can 32 be divided by 3? Is it 32 divisible by 3? No. When 32 is not divisible by 3, then this then b will also be a fraction. 32 by 3 अगर right hand side में आता है तो b भी fraction ही आएगा. So a equal to 5 is not possible. Okay, so I won't write. I will just do this in my mind. Correct? Now I will put a equal to 4. If I put a equal to 4, this is divisible. So let's see. If I put a equal to 4, 16 minus b into 8 minus a is 4. That is 32. So this cuts 8.
So B is 8. When A is 4, B is 8. So what is the profit now? 4 units of X is sold. So 4 into 4, and 8 units of B is sold. So for every unit there is 2. So 16 plus 16. So this is 32 lakhs. 32 lakhs. From this combination A equal to 4 and B equal to 8, we are getting 32 lakhs. Now let's see the next one. Let's see the next one. If I put A equal to 3, then again it is not possible. 8 minus 3 is 5. 32 divided by 5 is not, 32 is not divisible by 5. If I put A equal to 6, if I put, A equal to 5, A equal to 6, then I got this. If I put, if I put A equal to 2, if I put A equal to 2, then this entire value becomes 6. So 32 is also not divisible by 6. So A equal to 2 is also not possible. A equal to 1 is also not possible, because if I put A equal to 1, this and 8 minus A becomes 7. So 32 is not divisible by 7. The only value left is A equal to 0. If I put A equal to 0, this is 16 minus B into 8, that is 32. This is divisible by 4. So B here becomes 12. So B is 12 when A is 0. What is the profit from here? Profit will be, from 12 units of Y sold, it will be 12 into 2, 24 lakhs. So we have only 3 combinations possible: A equal to 6 and B equal to 0, A equal to 4 and B equal to 8, and A equal to 0 and B equal to 12. So these 3 are the only combinations. Now I have to see the maximum profit. Maximum profit what we got is when the combination was A equal to 4 and B equal to 8, we got 32 lakhs. So answer will be 32 lakhs. Okay. This was a very good question. It involves a lot of complexities. It involves a lot of thinking as well on how you should manage this kind of equations and factorize them to your benefit. Okay. And then you have to do maximum and minimum. Correct? Okay. Let's move to the next one. So this question says, Ria recorded the daily footfall at her cafe for 7 busy days. Okay. So Ria is recording the daily footfall at her cafe for 7 days. 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So I have made 7 blanks for the footfalls. Okay. अभी क्या बोल रहा है? The mean and median of the 7 counts are both 74. The mean and median of the both counts, since it is an odd number of places are there, so the median will be the middlemost value. So this value has to be 74. Everyone clear with this? Middle value has to be 74. Now the mean and median of the 7 counts are both 74. So mean is also 74. Okay. So what will be the sum? I'm not, see, for this kind of questions now, I won't read the entire word problem. I will read every sentence and try to make sense out of it, so that I don't read the entire word problem and then again start from the starting. So that does not make any sense. That will only increase the amount of time that we will take to solve each question. Okay. So mean is 74. So what will be the sum? Sum will be, sum of all the observations will be 74 into 7. So 74 is 728. So this becomes 518. So entire sum of all the 7 observations, all the daily footfall which Ria calculated is 518. Okay. Let's move ahead. When she ignores the 2 lowest day counts. Okay. When she ignores, so let's suppose these all blanks are in ascending order. Okay. The values are moving ahead. Like it is increasing. ये assume करो. ठीक है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर पे हम लोग ले रहे हैं. ठीक है. सो द लोएस्ट 2 विल बी दिस 2. करेक्ट. असेंडिंग ऑर्डर पे ले रहे हैं ना, तो लोएस्ट 2 विल बी दिस 2. ठीक. द मीन ऑफ द रिमेनिंग 5 days, when she ignores the 2 lowest day counts, the mean of the remaining 5 days rises by 1. So these 5 values का मीन कितना हो जा रहा है? 75. rises by 1. 74 से एक ऊपर. So it is 75. Well, the median stays unchanged. Median stays unchanged. Median मतलब अब ये वाला वैल्यू होगा, 5 का बीच वाला वैल्यू होगा, क्योंकि this is still odd. So the middlemost value will be the median. So अगर 74 है, this value has to be 74. Everyone clear on this?
दिस वैल्यू हैज टू बी 74 इफ दिस इज द मीडियन। एक ही नंबर हो सकता है मीडियन, क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में मीडियन एक ही होता है। लाइक यू डोंट हैव टू टेक द एवरेज ऑफ द मिडिल मोस्ट वैल्यूज, वो इवन में होता है, ऑड में यू विल गेट ओनली वन। Correct. Well, the median stays unchanged. All counts are whole numbers. All counts are whole numbers. Okay. And apart from 74, no number appears more than once. 74 ही बस एक से ज्यादा बार हो सकता है, बाकी कोई नंबर नहीं हो सकता बस। What is the highest single day footfall she would have observed? So I need this value. I need this value and I need to maximize this value. सब लोग अच्छे से ध्यान दो। आई नीड टू मैक्सिमाइज दिस वैल्यू। अगर मेरे को इसको मैक्सिमाइज करना है, बाकी सबको मैं क्या करूंगा, मिनिमाइज करूंगा। ठीक। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस वैल्यूज। अब देखो ये पूरे का मीन कितना है 75। सो सम ऑफ द टॉप फाइव, टॉप फाइव का सम कितना हुआ फिर, टॉप फाइव सम मतलब यहां से लेके यहां तक का पूरे का सम कितना होगा, दिस विल बी मीन 75 इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज 5, सो दिस इज 375। सो इन दोनों का सम कितना होगा, लोएस्ट टू सम, लोएस्ट टू का lowest two sum will be 518. This 518 was the sum of the entire 7 observations and this is the sum of the top 5. So top so bottom two क्या होगा, 518 minus 375 which is 25 18 143। ठीक। सो इन दोनों का सम कितना हो गया 143। अब 143 कैसे हो सकता है, सिंस नंबर्स कांट बी रिपीटेड, सो इन दोनों में कैसे कर मैं बिठा सकता हूं, सो 71 एंड 72 आई कैन राइट। ठीक। 71 एंड 72 आई कैन राइट। करेक्ट। करेक्ट। और कुछ पॉसिबिलिटी है, सोच के बताना, और कुछ पॉसिबिलिटी है। अब अब मैं क्या करूंगा, व्हाट इज द हाई, ये इसको मिनिमाइज करना है। सो अभी मैं क्या करूंगा, सिंस ये पूरे को मेरे को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। सो इसका वैल्यू मैं क्या लूंगा, इसका वैल्यू मैं क्या लूंगा 73। करेक्ट। अगर मैं यहाँ पे 70 एंड 73 लेता, यहाँ पे अगर मैं लेट सपोज 71 72 की जगह 70 73 लेता, सो दिस वैल्यू हैड टू बी 74। फिर एक्स्ट्रा हो गया ना एक वैल्यू, मेरे को तो मिनिमाइज करना है। सो दिस इज द मिनिमम वैल्यू। कब होगा, जब इसको मैं 71 लूंगा, इसको मैं 72 लूंगा एंड ये वैल्यू को मैं 74 से मैं फिर कम ले सकता हूं, और एल्स मेरे को फिर 74 ही लेना पड़ता। 74 से अगर मैं कम ले सकता हूं, ऐसे कंडीशन बन रहा है, सो आई विल टेक दैट कंडीशन, बिकॉज मेरे को तो इसको मैक्सिमाइज करना है। इसको मैक्सिमाइज मतलब एंटायर वैल्यू को मिनिमाइज। सो नाउ वी हैव गॉट एवरीथिंग, 71 72 73, these values are 74 and 74, so what I will take this value, this value I will again take 74। why, क्योंकि ये वैल्यू इससे या तो ज्यादा या तो सेम हो सकता है। सो ज्यादा मैं क्यों लूं, मेरे को तो मिनिमाइज करना है, तो मैं सेम ले लेता हूं 74। एंड बोला है ना 74 रिपीट हो सकता है। So now, what is the sum of this entire value? 74 plus 74. So entire sum of all the values apart from the highest one, 74 plus 74 plus 74 plus 73 plus in दोनों का, oh, sorry, plus in दोनों का sum is 143. So what sum are we getting? We are getting our 148, 218, 222, 292, 295, 295, 395, 435, 438। सो ये पूरे का सम अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन वी आर गेटिंग 438, तो इसका कितना हो जाएगा 518 माइनस 438, 518 टोटल सम and this is the sum of the other values, so this is 80। so highest value, what is the maximum value that the highest value can take is 80। so see this was a very nice question and आज आज के दिन में बहुत ज्यादा रिलेवेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि लास्ट के 3 4 सालों में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस काफी बार रिपीट हो रहे हैं, मतलब सेम टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट बहुत बार रिपीट हो रहे हैं। एंड इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस एंटायर कॉन्सेप्ट, देन whatever variations the cat paper has to offer, you can do it, because this had almost every concept that this type of questions can offer। okay, so I want everyone to redo this question and have the concepts very clear for this one। okay, let's go ahead। okay, try this one। okay, so what does this question say? On selling a calculator at 10% loss and a bag
at 20% gain on selling a calculator 10% loss. Okay, and bag at 20% gain. Sudhir gains 200. Okay, ठीक है, मैं यहीं तक क्वेश्चन पढ़ूंगा. मैं लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला कि वर्ड प्रॉब्लम को मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा. ऐसा टाइप के क्वेश्चंस को मैं बस हर एक सेंटेंस से मीनिंग निकालने की कोशिश करूंगा. ऑन सेलिंग कैलकुलेट 10% लॉस. ओके, so let the CP be, I'm taking the writing CPS CP only. So point one. So sorry, he's making a 10% loss on the calculator. Let the CP of calculator be, CP of calculator be C, and CP of bag be B. ठीक है, सी एंड बी ले लिया मैं. अभी क्या बोला, 20% गेन किया है बैग के ऊपर एंड 20% 10% लॉस किया है कैलकुलेटर के ऊपर एंड गेन्स 200. सो मैं इसको कैसे लिखूंगा, ऐसे करके लिख सकता हूं, 0.2 इंटू बी माइनस 0.1 इंटू क्या, सी. दैट शुड बी इक्वल टू 200. 20% गेन मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस का 20%. कॉस्ट प्राइस का 20%, वही तो गेन हुआ ना. एंड कैलकुलेटर का 10% लॉस मतलब 10% ऑफ द कॉस्ट प्राइस. उसको मैं सामने माइनस साइन बिठा दिया. क्यों माइनस साइन बिठाया, क्योंकि लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है इसलिए प्लस साइन. क्लियर, सिंपल. ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, लेट्स गो अहेड. Now else read the next one. If he sells the calculator at 10% gain and the bag at 30% gain. Okay, now if he sells the bag at 30% gain, which is 0.3b, and calculator at 10% gain again, so plus and 0.1 c, then he gains 400. प्रॉफिट इज 400. पहले कितना प्रॉफिट था 200 का, अभी कितना प्रॉफिट है 400 का. मैं क्या करूंगा, अब निकालने के लिए डायरेक्टली ऐड कर दूंगा. पॉइंट दिस वन गेट्स कैंसल फॉर 0.5 बी इज 600. सो बी इज 1200. क्लियर, इजी. ठीक, नाउ आगे का स्टोरी क्या बोल रहा है, ही मार्क्स द बैग एट 40% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस कितना मिल गया मेरे को 1200 बी का. अब इसको 40% मार्कअप कर रहा है, मतलब कितना बन गया 40% मार्कअप मतलब 1.4 इंटू 1200 विच इज 1680. ये मार्कअप प्राइस हो गया. ठीक, एंड ऑफर्स अ सिंगल डी% डिस्काउंट देके इसको कुछ में लेके आ रहा है सो एज टू गेन 19% ऑन द एंटायर ट्रांजैक्शन. 19% गेन. ठीक, इसका 19% गेन मतलब एग्जैक्ट वैल्यू सेलिंग प्राइस क्या होगी, ये सेलिंग प्राइस है. एमपी मार्कअप प्राइस से मैं डिस्काउंट देता हूं, सेलिंग प्राइस आता है. करेक्ट. एंड क्या बोला है कि ही इज गेनिंग 19% फ्रॉम द कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस से 19% ज्यादा होगा. सो what will be the selling price, selling price will be nothing but 1.19 into 1200, which is let me just use the calculator once. 1.19 into 1200, so this is 1428. So this value comes as 1428. So selling price is 1428. So 1680 पे मैं क्या ऐसा डिस्काउंट परसेंटेज दूं कि मेरा सेलिंग प्राइस क्या बन जाए 1428 बन जाए. बस यही है क्वेश्चन. सो 1680 इंटू, फिर से मैं जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था वहां पे जैसे एक्स बाई 100 को एक्स लिया था, वैसे ही इसको भी मैं ऐसे ही करूंगा. कैसे देखो, 1 माइनस एक्स इज 1428. करेक्ट. 1 माइनस क्यों लिखा, क्योंकि डिस्काउंट है, डिस्काउंट मतलब घटना. सो इसलिए माइनस, एंड एक्स बाई 100 को मैं फिर से एक्स लिख रहा हूं, मैं लास्ट में फिर उसको मल्टीप्लाई बाई 100 कर दूंगा. सो दिस इज 1428. 1428 डिवाइड बाई 1680. So this comes as 0.85. So x is nothing but 0.15. So x का वैल्यू 0.15 आ गया, मतलब परसेंटेज कितना होगा, डिस्काउंट परसेंटेज डी परसेंटेज विल बी एक्स पर 0.15 इंटू 100. सो दिस इज 15%. ठीक, एवरीवन क्लियर ऑन दिस. ठीक है. सो इससे हम लोग क्या टेक आउट करें कि एक एक लाइन पढ़ के उसका सेंस बनाओ. जितना सेंस बनाओगे फिर नेक्स्ट सेंटेंस में यू कैन कैरी फॉरवर्ड दैट एंटायर डेटा. पूरा पढ़ के फिर से वापस जाओगे तो ये सब क्वेश्चन में फालतू का टाइम लग जाएगा. ठीक है, लेट्स मूव अहेड. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दिस कॉन्सेप्ट has been repeated in CAT over many years. Okay, not just in the last 2-3 years, many years. So please do it carefully while you do it.
Okay, let's start with the question. Two places A and B are 45 kilometers apart and connected by a straight road. Okay, let's see this. Two places A and B are 45 kilometers apart. Kilometers apart. ठीक, and are connected by straight road. Clear? Anil goes from A to B. Okay. So Anil is going from A to B and Sunil goes from B to A. ठीक है? So Anil A से B जा रहा है, Sunil B से A आ रहा है. Clear on this? Starting at the same time, they cross each other in exactly 1 hour 30 minutes. Means they are crossing at t equal to 90 minutes, 1 hour 30 minutes. 90 minutes is nothing but 3/2 hours. ठीक, ये क्लियर है सबको? 3/2 hours कैसे हुआ? जिनको क्लियर नहीं है मैं दिखा देता हूँ. सो कुछ भी मिनट्स में दिया जाए तो उसको आवर्स में कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिवाइड बाई 60 करके. सो दिस इज 3/2 hours. ठीक है? ओके, लेट्स गेट बैक. अभी क्या बोल रहा है? इफ अनिल रिचेस बी एग्जैक्टली 1 hour 15 minutes आफ्टर सुनील रिचेस ए, द स्पीड ऑफ अनिल इन किलोमीटर पर आवर. ठीक. सो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा आप लोग को. सो लेट सपोज आफ्टर टी टाइम दे आर मीटिंग एट पॉइंट, लेट सपोज पी. ठीक है? लेट सपोज दे आर मीटिंग एट पॉइंट पी. आफ्टर दैट लेट्स एज्यूम अनिल टुक T1 टाइम टू रीच बी एंड सुनील टुक T2 टाइम टू रीच ए. मत टी टाइम तो गया, उसके बाद और T1 टाइम लिया अनिल बी रीच करने को एंड सुनील और T2 टाइम लिया ए रीच करने को. क्लियर? ठीक है? देन दिस टी दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. I want every one of you to memorize it. I want every one of you to memorize it. This t will be nothing but root over of T1 into T2. I want every one of you to memorize it. इसको अगर डिराइव करने की कोशिश करना चाहते हो तो इफ यू आर वेरी गुड इन अरिथमेटिक और इफ यू फील यू आर वेरी गुड इन मैथ्स, देन यू कैन गो अहेड एंड डिराइव इट. अदरवाइज there is not a requirement of deriving it. You can just memorize this. I want all of you to just memorize it by heart. This formula and another of this sort of question is V1 by V2. This is equal to root over of T2 by T1. These two formulas are very, very, very important. ठीक है? This is speed of first by speed of second will be equal to root over of T2 by T1. What is T1 and T2? As I explained, T1 is the amount of time that the first person took to reach B from the point of meeting. Similarly, T2 is the amount of time that the second person took to reach A from the point of meeting. ठीक है? पूरा टाइम T1 नहीं है, बस T से मतलब ये P से लेके B तक का सफर का T1 टाइम लगाया है. ठीक है? अब ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो. फिर से पॉज करो वीडियो, ये क्वेश्चन को, अब ये जो फॉर्मूला लिखा इस ये यूज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करो. देखो कितना इजी बन जाएगा. ओके, I hope most of you have got it correct. Let's see. Starting at the same time, they cross each other in exactly 1 hour 30 minutes. Okay. So after that, they have staying. If Anil reaches B exactly 1 hour 15 minutes after Sunil reaches A. Okay. So let's assume T2 as X. Okay. I can assume T2 as X. Then T1 is nothing but X plus 1 hour 15 minutes means 75 minutes. 75 by 60 is 5/4 hours. So basically Anil is taking 5/4 hours more than Sunil. वही है ना क्वेश्चन का मतलब. So if I take this as T2 as X, so this will be X plus 5/4. Simple. Correct? So T1 becomes X plus 5/4. T2 is X, I'm assuming. Now I will use this formula. I know T. What is T? 3/2 hours. So 3/2 will be equal to root over of X into X plus 5/4. इसको सॉल्व करो. सो दिस इज 9/4. स्क्वायर को इस साइड लेके आया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x/4. सो दिस बिकम्स 4x स्क्वायर plus 5x minus 9 equal to 0. So let me solve over here. So 4x square
माइनस 4x प्लस 9x माइनस 9 इक्वल टू 0. सो 4x x minus 1 plus 9 x minus 1 equal to 0. So 4x plus 9 into x minus 1 equal to 0. So x is minus 9 by 4 comma 1. Minus, it can't be a negative value. Time can never be negative. Correct? So what we got? X as 1. x का वैल्यू मेरे पास 1 आ गया. सिंस x का वैल्यू मेरे पास 1 आ गया, तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा? स्पीड ऑफ अनिल. सो अनिल का कितना, मेरे को डिस्टेंस पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को पूरा डिस्टेंस पता है. तो अगर मेरे को अगर टाइम ऑफ अनिल मिल जाएगा, मेरे को अगर टाइम ऑफ अनिल मिल जाएगा टू कवर द एंटायर डिस्टेंस, आई कैन गेट द स्पीड. आई कैन गेट द स्पीड. कैसे? डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम. क्लियर? ठीक है. सो T1 कितना हो गया? T1 विल बी 1 प्लस 5/4 विच इज 9/4. सो इसको T1 में कितना टाइम लगा अनिल को टू रीच B फ्रॉम P? ही टुक 9/4 आवर्स. सो एंड यहां से यहां तक रीच करने कितना टाइम लगा था? 3/2. सो एंटायर टाइम दैट अनिल टुक was 3/2 plus 9/4, which is nothing but 15/4 hours. Now I can get the speed very easily. Speed of Anil will be 45 divided by 15/4. So it is 3. So 12 kilometer per hour. Check. So answer is 3. 12 kilometer per hour. I hope everyone is very clear with this. This is a very, very, very important question. And I want all of you to memorize these two formulas and practice this type of questions. Okay? Okay? Let's go ahead. Yeah. So pause the video and try solving this. Okay. Okay. So what does this question say? Sixth one. A vessel contains 75% milk solution. Okay. So there is a vessel having 75% milk solution. 75% means 3/4 of the entire solution is milk. So milk is 3/4. Water is 1/4. ठीक. 20% of the solution is removed and replaced by water. So basically this is a kind of question where is replacement kind of questions of mixtures. Correct? So I will show you how I basically approach these kind of questions. 20% of the solution is removed and replaced by water. Then 25% of the solution is removed and replaced by water. Finally, 33.33% of the solution is removed and replaced by water. So this is a continuous replacement, but not of the same quantity. याद है ना जो फॉर्मूला तुम लोगों को दिया गया था कि फाइनल बाई इनिशियल इक्वल टू रिप्लेसमेंट पावर n. सो वो तब होता है, वो फॉर्मूला हम लोग तब लगा सकते हैं जब रिप्लेसमेंट्स आर सिमिलर और सेम. यू कैन से नॉट सिमिलर, सेम होना चाहिए. हाँ. सो रिप्लेसमेंट्स जब सेम हो तब वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बट अभी नहीं, क्योंकि रिप्लेसमेंट्स इज नॉट सेम. हर टाइम पे चेंज करता जा रहा है. वेरी क्रूअल मैन. ओके. सो सो पहले ऐसे के टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग दिखा देते हैं. सो लेट्स सपोज पहले 3/4 था. ठीक है. मिल्क पहले 3/4 था. अभी 20% ऑफ द सोल्यूशन इज रिमूव्ड. अब अगर 20% सोल्यूशन रिमूव हो रहा है, सो 3/4 जो 75% जो मिल्क था उसका भी 20% निकल जाएगा. 20% सोल्यूशन में अगर निकालू, सो मिल्क का भी 20% निकलेगा, वाटर का भी 20% निकलेगा, मिल्क का भी 20% निकलेगा, एंड फिर दोनों को मिला के 20% ऑफ द इंटर सोल्यूशन बनेगा. क्लियर? सर ये कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग पूरा ये सॉल्व कर देंगे विद इन 30 सेकेंड्स. कैसे? 20% ऑफ द सोल्यूशन इज रिमूव्ड, सो बचा कितना? 4/5. 80% बचा ना. 80% कितना होता है? 4/5. 20% रिमूव किया तो बचा कितना? 80%. सो कितना बचा वो मैं देखूंगा. पहले 75% था. ठीक है. दैट इज 3/4. अभी कितना बचा? 80% उसका, मतलब उसका 80% हो गया ना. 20% हटा दिया मतलब कितना हुआ? 80% हो गया. सो 3/4 का 80% हो गया, विच इज 3/4 इंटू 4/5. बस ये कॉन्सेप्ट है कि 20% ऑफ सोल्यूशन निकाल रहा हूं तो 20% ऑफ मिल्क भी निकलेगा. मतलब जो मिल्क 3/4 जो मिल्क था वो उसका भी 20% निकल जाएगा. सो बचेगा कितना? 80% इंटू 4/5. अब क्या बोला? 25% ऑफ द सोल्यूशन इज रिमूव्ड. अब इसके बाद फिर 25% रिमूव हो रहा है. पहले 20% रिमूव हुआ, अब कितना रिमूव हो रहा है? 25%. अब 25% रिमूव मतलब कितना बच रहा है? कितना बच रहा है? 3/4. 75% बच रहा है.
सीधा सा, जितना बच रहा है उसको मल्टीप्लाई करते जाओ, खत्म। जितना बच रहा है उसको मल्टीप्लाई करते जाओ, खत्म। सो पहले 80% बचा तो 4/5, अब 75% बच रहा है, मतलब ये पूरे का 75% बच रहा है, मतलब क्या करूंगा मैं, मल्टीप्लाइड बाई 3/4। यही हो रहा है ना फंडा। पहले क्या हुआ, 3/4 का 80% किया मैं, अब ये पूरे का 75% किया इंटू 3/4, क्योंकि ये पूरे का 75% बच रहा है, सो मैं 75% कर दूंगा इसका पूरे का। अब क्या बोल रहा है, लास्ट फाइनली 33.33%। 33.33 मतलब कितना निकाल दिया, 1/3 निकाल दिया, बचा कितना, 2/3। सो इसको फिर से मैं क्या करूंगा, 2/3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 66.66% बचा। 66.66% बचा, मतलब 2/3 ऑफ दिस एंटायर थिंग इज बिंग लेफ्ट। ठीक, कंटिन्यूअस टाइप्स कर रहा हूं। क्लियर, इजी, एकदम इजी। ये कॉन्सेप्ट लेके ही सॉल्व करो, मिक्सचर से क्वेश्चन एकदम इजी बन जाएगा। ठीक है, नाउ क्या करूंगा, 4 4 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, 2 2, सो दिस इज नथिंग बट 3/10। 3/10 मतलब कितना हुआ, 0.3, विच इज नथिंग बट 30%। ठीक, एकदम इजीली हो गया ये क्वेश्चन, कुछ दिक्कत नहीं था। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे ही डील करेंगे। ठीक है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन पिक किया, बिकॉज दीज ऑल हैव डिफरेंट वैल्यूज। डिफरेंट वैल्यूज में भी प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे, सेम वैल्यूज पे प्रैक्टिस कर रहे थे। डिफरेंट हो जाएगा तो क्या करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, लेट्स गो अहेड। आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ एजेस। ओके, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ एजेस. So let's see what this question says. When Rajesh's age was same as the present age of Garima, the ratio of the ages was 3:2. क्या बोल रहा है भाई? When Rajesh's age was same as the present age of Garima. अच्छा, मतलब जब राजेश का एज गरिमा के एज के इक्वल था, तब द रेशियो ऑफ द एजेस वाज 3:2। अच्छा, अब समझा। थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना? राजेश एज एंड गरिमा का एज, ठीक है, लेट सपोज अभी का एज दोनों का RNG है। सो भी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब राजेश का एज गरिमा का एज था, राजेश का एज जब गरिमा का एज था, तब गरिमा का एज, तब राजेश का एज एंड गरिमा का एज वाज इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, सो अगर राजेश का एज जब गरिमा का एज था, सो ये कितने साल पहले होगा। हमेशा एजेस के क्वेश्चन में एक सवाल पूछना कि एक एक चीज कांस्टेंट रहता है, दैट इज डिफरेंस ऑफ एजेस। डिफरेंस ऑफ एजेस इज ऑलवेज सेम। लेट सपोज एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है। बड़ा भाई का एज है 20, छोटे भाई का एज है 10। 10 साल बाद उन दोनों का अभी का डिफरेंस कितना है, 10 ईयर्स। 10 साल बाद बड़े भाई का कितना एज हो जाएगा, 30। छोटे भाई का कितना एज हो जाएगा, 20। डिफरेंस ऑफ एज फिर भी सेम है। सो एक चीज हमेशा याद रखना, एजेस में, एजेस का कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन में डिफरेंस ऑफ एजेस से ही हम लोग को हमेशा खेलना होता है, क्योंकि डिफरेंस ऑफ एजेस इज द ओनली थिंग विच रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ठीक है, सो राजेश का एज जब गरिमा का एज था, ये कितने साल पहले होगा, R - G साल पहले। आई होप एवरीवन इज क्लियर ऑन दिस। राजेश का एज गरिमा का एज कितने साल पहले होगा, R - G साल पहले। सो उस समय गरिमा का एज क्या होगा, G - R - G। आई होप एवरीवन इज क्लियर, ये अच्छे से समझना। राजेश का एज गरिमा का एज कब होगा, मतलब R एंड G के बीच में जो गैप है, उतना गैप अगर पीछे मैं लेके आऊंगा, तो गरिमा का एज हो जाएगा राजेश का एज। सो वही मैं किया, R को R - G से माइनस कर दिया तो ही G आया। तो G को भी R - G से माइनस करूंगा, सो दिस बिकम्स 2G - R, and it is said this and this are in the ratio of 3:2। so यहां से मेरे को इक्वेशन मिल गया, G/2G - R is nothing but 3/2। so 2G is 6G - 3R, so 3R is 4G। ठीक, so 3R is 4G, मेरे को यहां से एक इक्वेशन मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या बोलता है। when Garima's age becomes the same as present age of Rajesh, the ratio of the ages of Rajesh and Garima will become, okay। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अब गरिमा का एज जब राजेश का एज हो जाएगा, गरिमा का एज जब राजेश का एज हो जाएगा, तब राजेश का एज क्या होगा।
सेम कॉन्सेप्ट, गरिमा का एज राजेश का एज कब होगा, जब गरिमा विल गेन द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, व्हेन गरिमा विल गेन द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस तभी तो होगा। तो इसको भी वही गेन करेगा, दिस विल बी आर प्लस आर माइनस जी। आर माइनस जी इज द डिफरेंस ऑफ एजेस, वही जब राजेश भी गेन करेगा, जैसे गरिमा गेन किया डिफरेंस ऑफ एजेस, वैसे राजेश भी डिफरेंस ऑफ एजेस गेन करेगा। सो दिस बिकम्स टू आर माइनस जी। नाउ टू आर माइनस जी और आर के बीच में मेरे को रेशियो चाहिए, यही पूछा है ना बस क्वेश्चन में। सो टू आर माइनस जी डिवाइड बाई आर, यही रिक्वायर्ड रेशियो है। सो अब आर को मैं क्या लिख दूं, जी को मैं क्या ये कर देता हूं, जी इज बेसिकली नथिंग बट 3r/4 फ्रॉम दिस इक्वेशन। ठीक है, उसको मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ। सो 2r माइनस 3r/4 बाई आर। सो दिस इज, so this becomes 8 minus 3, 5/4. So this is nothing but 5:4. So answer will be 5:4. Clear? So यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंस है, डिफरेंस ऑफ एजेस का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट। if you are very sure, if you are very like if you know this concept well, difference of ages का जो कॉन्सेप्ट है, then this type of questions you can डू इट वेरी फास्टली। दिस वॉज अ कैट 24 का ही क्वेश्चन था, ये कैट का ही क्वेश्चन था। ठीक है, ये कैट का ही क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर का। ठीक है, सो अगर डिफरेंस देखो, डिफरेंस ऑफ मतलब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अच्छे से जानने से ही ये क्वेश्चन कितना इजी बन गया। इट इज नॉट इवन अ 2 मिनट क्वेश्चन, 1.5 मिनट्स में यू कैन सॉल्व इट इफ यू हैड नोन दिस छोटा सा कॉन्सेप्ट। ठीक, यही सब चीज ऐसे ही क्वेश्चन में लेके आया हूँ जहां पे हर एक तुम्हारा कॉन्सेप्ट ब्रश अप हो जाए। एंड जैसे कैट में एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन लाते हैं, वैसे ही कोई टाइप ऑफ क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करते जाओ कि तुम्हारा ब्रशअप भी होता जाए एंड तुमको एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस होता जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विथ योर रिविजन। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। ओके, तो सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, ओके सॉरी, so the next question says in a state of, sorry, just a second. In yes, in a statewide election, 50% of likely voters initially back the Democratic candidate and remaining 50% back the Republican candidate. Okay, so स्टार्टिंग में क्या था, दो दो पार्टीज थे, बेसिकली यही बोल रहा है क्वेश्चन में, दो पार्टीज थे, डेमोक्रेटिक कैंडिडेट और एक रिपब्लिकन कैंडिडेट। ठीक है, टाइप ऑफ यूएस जैसा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, रिपब्लिक हाँ, ठीक है, टाइप ऑफ यूएस जैसा। सो 50% ऑफ लाइकली वोटर्स इनिशियली बैक द डेमोक्रेटिक कैंडिडेट, मतलब 50%। लेट्स सपोज द एंटायर नंबर ऑफ वोटर्स वेर एक्स, सो 50% ऑफ एक्स सपोर्टेड डेमोक्रेटिक, सो दिस इज नथिंग बट 0.5x, दिस इज नथिंग बट 0.5x। जो डेमोक्रेटिक को नहीं कर रहा है एज्यूम वही कर रहा है कि पूरा पूरी, मतलब एज्यूम नहीं करने की जरूरत नहीं, 50% दे दिया है। ओके ठीक, सो 50% ऑफ them supported democratic and 50% of them supported republican, so 0.5x and 0.5x I'm taking। ठीक है, now a few days later 20% of the democrats switch their support to republican। अरे भाई ये तो दोगलाबाजी नहीं करने का, ये तो दोगलापन है। ठीक, तो क्या कर रहा है डेमोक्रेट, जो पहले डेमोक्रेट्स थे, डेमोक्रेट्स को सपोर्ट कर रहे थे, नाउ दे आर शिफ्टेड टू रिपब्लिकन। कितने लोग ऐसे हुए, 20%, मतलब 20% ऑफ 0.5x नाउ शिफ्टेड टू रिपब्लिकन। सो 20% ऑफ दिस इज नथिंग बट 0.1x। 20% ऑफ 0.5x कितना होता है, 0.1x। ठीक, switch their support to Republican while 10% of the Republicans switch their support to Democrat, मतलब 0.5x का 10%, 10% कितना होगा, 10% will be nothing but 0.05x। ठीक है, after this shifts what minimum percentage of total electorate must the Democratic campaign now attract so that Democratic tie। okay, so new कितना हो गया, ये old था, ये old कितना था दोनों का 0.5x 0.5x, 50%, 50%, अभी तो 50% नहीं है ना, चेंज हुआ है। सो अभी न्यू क्या हो गया, इसको कितना गेन हुआ, इसको 0.5x गेन हुआ डेमोक्रेट्स को, सो दिस बिकम्स 0.55x, सॉरी नो नो, इसको गेन 0.05x का हुआ, बट ये लूज भी कितना किया, 0.1x। सो लूज 0.1x किया, गेन 0.05x किया, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, गेन या लूज, लूज हुआ। कितने का लूज हुआ, 0.1 माइनस 0.05, सो दिस बिकम्स 0.45x। 0.05x का लूज हुआ क्योंकि 0.1x निकल गया,
सो कितना बचा 0.4x, उसके बाद फिर 0.05x घुसा, सो 0.45x हो गया। ठीक है, रिपब्लिकन का कितना हो जाएगा फिर 0.55x। ठीक, क्लियर, सेम तरीके से। नाउ द क्वेश्चन सेज आफ्टर दिस शिफ्ट्स व्हाट मिनिमम परसेंटेज ऑफ टोटल इलेक्टोरेट मस्ट डेमोक्रेटिक कैंपेन नाउ अट्रैक्ट, मतलब डेमोक्रेटिक कैंपेन मतलब डेमोक्रेटिक पार्टी को और कितना एक्स्ट्रा ऐड करना, सॉरी, और कितना वोटर्स को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। टोटल इलेक्टोरेट मतलब परसेंटेज ऑफ टोटल इलेक्टोरेट बोला है, मतलब परसेंटेज ऑफ एक्स बोला है, कितने को अट्रैक्ट करना पड़ेगा सो दैट डेमोक्रेट्स नाउ टाई द रिपब्लिकन्स। टाई कब होगा, जब दोनों का 0.5x हो जाएगा, तभी तो टाई होगा ना, और कोई रेशियो में और कोई सिनेरियो में तो टाई नहीं हो सकता। ठीक है सो कितना लोगों को लाना पड़ेगा, अब 0.5x को कितना जाना पड़ेगा 0.5x तक, सो कितना गेन करना पड़ेगा इसको 0.05x गेन करना पड़ेगा। 0.05x आउट ऑफ हाउ मेनी x, सो 0.05x, सो परसेंटेज कितना करना पड़ेगा 0.05x बाई x इंटू 100, so this is nothing but 5%, so they have to attract another, they have to attract 5% of the entire population, so answer will be 5%। ठीक है, so एक्स्ट्रा और 5% अगर कर लेगा अट्रैक्ट तो दोनों का टाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अगर 0.05x आ गया 0.5x पहुंच गया तो यहीं से तो अट्रैक्ट कर रहा है, रिपब्लिकन से ही तो अट्रैक्ट करेगा ना। सो यहां से अगर ये 0.05x खींच लिया तो इसका माइनस हो गया, इसका प्लस हो गया, एक का प्लस हो गया एक का माइनस हो गया, तो दोनों का फिर से बैलेंस आउट हो गया। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, दिस वॉज नॉट अ टफ क्वेश्चन। ठीक, वाई आई पिक दिस क्वेश्चन, क्योंकि इलेक्शन टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते थे पहले कैट में, 2017 या 2018 तक आए थे काफी। ठीक है, सो आई वांटेड यू टू प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस एज वेल। ओके लेट्स गो, ओके लेट्स मूव हेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, अ फ्रॉग परस्यूज अ डियर एंड टेक्स 5 लिप्स फॉर एवरी 6 लिप्स ऑफ द डियर। ओके, ठीक, मतलब डियर और फ्रॉग का कुछ घटना है, जैसे टॉर्टोइज और रैबिट का था, अभी थोड़ा चेंज हो गया है, अभी फ्रॉग और डियर का है। ठीक है, सो फ्रॉग और डियर क्या बोल रहा है, फ्रॉग परस्यूज अ डियर and takes 5 leaves for every 6 leaves of the deer. So let's suppose frog and deer में किया, so for every 5 leaves of the frog the deer is taking 6 leaves। ठीक है, so this is number of leaves। so इसका मतलब क्या है, for every 5 leaves the deer is taking 6 leaves, मतलब अगर मैं टाइम को कांस्टेंट कर दूं देन अगर फ्रॉग 5 leaves ले रहा है तो डियर उसी टाइम पे 6 leaves लेगा। ठीक है, यही है टोटल फंडा इसका। बट 4 leaves of the frog are equal to 5 leaves of the deer, मतलब 4 leaves of the frog is equal to 5 leaves of the deer, मतलब क्या है कि जब फ्रॉग 4 लीप ले रहा है दैट डिस्टेंस, नाउ कम्स अ डिस्टेंस नॉट नंबर ऑफ लिप्स, नाउ कम्स अ डिस्टेंस कि 4 लिप्स का डिस्टेंस इज बेसिकली इक्वल टू 5 लिप्स का डिस्टेंस ऑफ डियर, मतलब 4 लिप में जितना वो डिस्टेंस कवर कर रहा है similar distance will be covered by the deer in 5 lips। So can I write this कि 4f and what is f कि distance covered by the frog in 1 lip। ठीक है, so 4 lips में 4f distance cover करेगा। Similarly let d be the distance covered by the deer in 1 lip, so 5d में 5d cover करेगा। now मैं ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करता हूँ, जस्ट सी दैट मैं क्या करूंगा ना यहाँ पे, अब एलसीएम ले लूंगा 4 और 5 का। एलसीएम क्या क्यों लूंगा, क्योंकि मेरे को फ्रैक्शंस में डील नहीं करना है, मेरे को इंटीजर्स में डील करना है, तो मैं 4 और 5 का एलसीएम ले लूंगा, सो दैट इज 20। सो नाउ 1f is basically 5 and 1d is basically equal to 4, so one leap of frog is equal to 5 units and one leap of deer is basically equal to 4 units। so मेरे को ये भी मिल गया, so मैं किससे करूंगा 5 एंड 4 से इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैं क्यों मल्टीप्लाई किया ये, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में पूछा है कि स्पीड्स ऑफ फ्रॉग एंड डियर चाहिए। मेरे को अगर ये पता है कि सेम टाइम पे एक फ्रॉग कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, मेरे को डिस्टेंस के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ लिप्स इनटू डिस्टेंस covered in each lip। distance covered in each lip from frog is 5, distance covered from each lip from deer is 4, and number of lips they are giving, the number of lips they are taking in the same time is 5 and 6, so I'm just multiplying them, so this becomes 25, this becomes 24, so compare the speeds of frog and deer, so this is 25 is to 24। this is a very good question and very tricky one as well। so cat is known for this type of tricky questions। so इसमें हम लोग क्या सीखे कि नंबर ऑफ लिप्स चाहिए एंड एक लिप में कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा, सीधा सा बात है। ठीक है, ओके, एवरीवन क्लियर विद दिस, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन।
Okay, so this question says Sham sold a cycle at a gain of X percentage. Okay. Had he sold it at a loss of X percentage, he would have got 10x lesser as compared to the price that he got at a gain of X percentage. Okay. So पहले वो क्या किया शाम ने कि सेल किया एट अ गेन ऑफ X परसेंटेज. सो लेट द फाइनल सीपी बोला है तो लेट्स सीपी लिख देता हूं मैं. ठीक है, लेट सीपी बी सीपी. नो एक्स नथिंग, ओनली सीपी बी सीपी. So when he sold the cycle at a gain of 1%, so selling price when it sold it at a gain of X percentage कितना होगा? CP into 1 plus X. अगर मैं गेन में सेल कर रहा हूँ तो प्लस हो जाता है. एंड एक्स परसेंटेज बोला है तो मैं क्या पहले फर्स्ट क्वेश्चन से मैं क्या कर रहा हूँ? एक्स बाई हंड्रेड को एक्स बाई हंड्रेड नहीं लिख रहा हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ? सिर्फ एक्स लिख रहा हूँ. वही यहाँ पे भी करूंगा. Had he sold it at a loss of X percentage, he would have gained got 10x lesser as compared to the price. So अगर दोनों का डिफरेंस कितना बोल रहा है कि 10x lesser, मतलब प्रॉफिट में जो सेल कर रहा हूं एंड लॉस में जो सेल कर रहा हूं, दोनों में से गैप कितना है? दोनों का गैप हो जाएगा 10x का. ठीक है. बट सिंस यहां पे मैं x को मतलब x बाई हंड्रेड को x ले रहा हूं, सो दिस विल बी नथिंग बट 10 इंटू हंड्रेड करना पड़ेगा मेरे को. सो दिस बिकम्स 1000x. ठीक है, ये समझना. मैं ये 1000x क्यों लिख रहा हूं 10x की जगह? क्योंकि x मैं दूसरा x को मैं सब्स्टिट्यूट करके दूसरा x लिया हूं जहां पे x बाई हंड्रेड को मैं लिया हूं. ठीक है. सो अगर तुम ऐसे सोचोगे, लेट सपोज x डैश कर रहा हूं मैं. ठीक है, लेट सपोज x डैश ले लिया, एक अलग ही वेरिएबल कर लिया x डैश. ठीक है, x डैश इज x बाई हंड्रेड. सो x इज नथिंग बट 100x डैश. ठीक, 100x डैश. सो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? 10x को मैं क्या लिखूंगा? 10x विल बी 1000x डैश. यही किया हूं, वही आया ना, वही लिखा हूं. ठीक है, कुछ टफ नहीं है. थोड़ा थिंकिंग बढ़ाओ, थिंकिंग थोड़ा वाइडन अप करो. ठीक है. ठीक है, सीपी इंटू 1 plus x डैश माइनस सीपी इंटू 1 - x डैश. दिस शुड बी इक्वल टू दिस वैल्यू 1000x डैश. ठीक है. अब मैं क्या करूंगा? सीपी सीपी कैंसिल हो गया, सो 2 CP x डैश दैट विल बी इक्वल टू 1000x डैश. सो x डैश भी कैंसिल, सो सीपी इज नथिंग बट 500. सिंपल, एकदम सिंपल क्वेश्चन था ये. ठीक है. This was no doubt a A-level question which you could have attempted in the first round of your mock. मतलब जब भी एग्जाम दे रहे हो क्वांट्स का, या सेक्शनल दे रहे हो या तो मॉक दे रहे हो या तो एक्चुअल कैट में हो. So this should have been the first, like when you are targeting the questions which you should be doing, this should have been there. This is a A-level question. This is a simple question. Okay. 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 So let's move to the next question. As you all can see, so let's start with this. A baker buys ingredients worth 7564 to prepare pastries. Okay, so cost price of all the pastries is given as 7564. ठीक है. He sells one third of the pastries at a loss of 20%. ठीक है, तो क्या किया? वन थर्ड जो पेस्ट्रीज थे, मतलब सब पेस्ट्रीज का कॉस्ट प्राइस कितना है? सबका मिला के 7564. उसका वन थर्ड ऑफ दोज ही सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20%. सो वन थर्ड ऑफ द पेस्ट्रीज अगर मैं कर दूंगा तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द एंटायर का वो भी तो वन थर्ड हो जाएगा. फेयर एनफ. सो कॉस्ट प्राइस ऑफ वन थर्ड पेस्ट्रीज कितना होगा? कॉस्ट प्राइस ऑफ वन थर्ड पेस्ट्रीज कितना होगा? 7564 इंटू 1/3. टोटल का 7564 है, ऑफ द होल नंबर ऑफ मतलब सब पेस्ट्रीज का कॉस्ट प्राइस है 7564, तो वन थर्ड का 7564 इंटू 1/3. सो दिस कम्स अस टू 5 12. Oh, sorry. ओके. ओके, सो दिस इज नॉट डिविजिबल. ठीक है, यहाँ पे यहीं पे रख देते हैं 7564 इंटू 1/3. एंड नाउ ही सेल्स वन थर्ड ऑफ द पेस्ट्रीज एट लॉस ऑफ 20%. सो एसपी ऑफ वन थर्ड, एसपी ऑफ दिस पेस्ट्रीज कितना होगा? 7564 इंटू 1/3 इंटू लॉस ऑफ 20%. लॉस ऑफ 20% मतलब क्या है? 1 - 20/100. सीपी, ये पूरा सीपी हो गया. एंड दिस इज द loss part which is 1 - 20/100, so which is nothing but 7564 into 1/3 into 4/5. Correct. Okay, so sorry.
Okay, so we got the selling price of all those one third pastries. ठीक है, I'm not doing any calculations here. We will go to the end and then see and then see if we can simplify the calculations. पहले मैं कुछ नहीं करूंगा, ये अपना रूल होता है, पहले कुछ भी डेसिमल वगैरह जहाँ पे नहीं कट रहा है वहां पे करने का जरूरत नहीं है. वी नेवर नो कि बाद में जाके कहाँ पे कट जाए. ठीक है. सो नाउ अब क्या बोला क्वेश्चन में, एट व्हाट प्रॉफिट परसेंटेज शुड ही सेल द रिमेनिंग पेस्ट्री सो दैट ही मेक्स एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन द एंटायर बैच. मतलब पूरा जब एंटायर जितने सारे पेस्ट्रीज है सब सेल करेगा, सो व्हाट ही विल हैव 25% प्रॉफिट ऑन द एंटायर बैच. ठीक है. सो व्हाट आई विल डू इज सी 7564 into 1 by 3 into 4 by 5. This is the selling price of one third pastries. Now selling price of the remaining pastries is like one third already हो गया, तो बचा कितना, टू थर्ड. सो टू थर्ड इंटू 7564 into 1 plus x. What is x? X is basically I'm writing which is the profit percentage. So instead of x by 100 I'm writing x, जो initially भी किया था. ठीक है. So instead of writing x by 100 I am writing x. ठीक है. लास्ट में जो x का वैल्यू होगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर हो जाएगा अपना. And this should be equal to 25% of the entire batch. 25% means 5 by 4 into 7564. This should be the selling price of the entire whole of pastry, entire lot of pastries का selling price इतना होना चाहिए. Selling price of one third pastries plus selling price of two third pastries, that should be equal to selling price of all the pastries. तो 5 by 4 क्यों आया? 25%. 25% को मैं क्या लिखता हूँ? 1 plus 1 by 4. So that comes as 5 by 4. Now I can see 7564 will get cancelled everywhere. So this entails us to this one 4 by 15 plus 2 upon 3 into 1 plus x, that comes as 5 by 4. So 2 by 3 into 1 plus x is nothing but 5 by 4 minus 4 by 15. So let me take entire thing over here now. 2 by 3 into 1 plus x, that will be equal to 60, and this will be 15 into 75 minus 16. So 59 by 60. Now I can have this one cut 20. So 1 plus x comes as 2 will come here. So 59 by 40. So x will be 19 by 40. So x comes as 19 by 40. So percentage x पर percentage कितना होगा? x into 100 कर दूंगा मैं, क्योंकि पहले तो x by 100 लेके किया हूं ना. So 1900 by 40 हो जाएगा, which is nothing but 47.5%. So our answer is option B. Okay, everyone clear with this? बहुत अच्छा क्वेश्चन था. ठीक है. I want all of you not to write x by 100 in the equation part. Always write x and then at the end multiply it with 100. सीधा. Okay, let's go to the next one. Okay, I hope everyone can see the question. Just pause it, try for 3 minutes, 3 to 4 minutes, and then see the solution. Okay. Okay, so let's see क्या है क्वेश्चन में. P and Q working together can complete a piece of work in 24 days. Okay, so P plus Q working together are completing the entire work in 24 days. ठीक है. While Q and R working together can complete it in 18 days. ठीक है. So P plus Q are completing it together in 24 days. Q plus R is 18 days. Okay, यही है. All three start the work together, but Q leaves out. Okay. फिर ये इक्वेशन की तरफ लेके जा रहा है मेरे को. वो जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो पूरा पूरी मेरे को हेल्प करेगा टू फ्रेम द इक्वेशन. तो उससे पहले मैं देख लेता हूँ मैं इससे क्या क्या कर सकता हूँ. सो 24 डेज एंड 18 डेज है, तो मैं क्या करूँगा, एलसीएम मेथड में मैं करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि दैट सीम्स इजियर rather than using fractions and all. So 24 and 30 18 का मैं एलसीएम ले लेता हूँ. 24 कॉमा 18 का एलसीएम ले लेता हूँ, which is nothing but 72. So let us assume the entire work done is 72 units. ठीक है. So अगर 72 यूनिट्स है तो P प्लस Q का एफिशिएंसी क्या होगा, दोनों का एक साथ का मतलब दोनों एक साथ काम करेगा तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 72 डिवाइड बाई 24 विच इज 3 यूनिट्स पर डे. सिमिलरली Q प्लस R का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 72 डिवाइड बाई 18 विच इज 4 यूनिट्स पर डे. सो एफिशिएंसी ऑफ क्यू एंड आर का क्या हो गया, दोनों का मिला के दिस इज 4 यूनिट्स पर डे हो गया, एंड पी प्लस क्यू का 3 यूनिट्स पर डे हो गया. सो बेसिकली
P प्लस क्यू प्लस आर, P प्लस टू क्यू प्लस आर होगा, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा, दिस इज कम एज P प्लस क्यू डॉट बार एंड आर वन, सो P प्लस टू क्यू प्लस आर गिव्स मी 7 यूनिट्स पर डे। ठीक है, 7 यूनिट्स पर डे। अब देखते हैं, अब नेक्स्ट वाले सेंटेंस को पढ़ते हैं एंड लेट्स ट्राई टू मेक द इक्वेशन। ठीक, all three start the work together but Q leaves after 6 days। ठीक है, so P plus Q plus R all are working for 6 days, मतलब all three started the work but Q ने 6 दिन बाद लीव किया, so तीनों ने 6 दिन तो काम किया, so P plus Q plus R into 6 मैं लिख रहा हूं, प्लस क्या होगा, P लीव्स आफ्टर 12 डेज, स्टार्ट से 12 दिन तक P काम किया है, सो यहां पे तो 6 दिन का वो काउंट हो गया, सॉरी यहां पे तो 6 दिन का उसका काउंट हो गया, बट और 6 दिन वो काम किया है, मतलब क्यू छोड़ने के हाँ, जब क्यू छोड़ दिया उसके बाद और 6 दिन काम किया होगा, मतलब सो एंड वहां पे कौन दोनों काम किया है, पी प्लस आर, सो पी प्लस आर कंटिन्यूड फॉर अनदर 6 डेज, क्यों, क्योंकि पी ने टोटल 12 डेज काम किया है, पी क्यू आर कितने दिन काम किया, 6 डेज, सो उसके बाद क्यू लीव कर दिया, सो पी प्लस क्यू प्लस आर इंटू 6 प्लस पी प्लस आर इंटू 6, क्यों, क्योंकि पी पहले सबके साथ 6 दिन काम किया, आर के साथ ओनली 6 दिन काम किया, सो टोटल 12 दिन काम किया। नेक्स्ट, द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीट बाय आर अलोन इन द नेक्स्ट 6 डेज, नेक्स्ट 6 डेज, दिस नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो नेक्स्ट 6 डेज मतलब उसके बाद 12 दिन, 12th डे के बाद और वो 6 दिन काम किया, सो दैट इज अलोन ऑफ आर विच इज आर इंटू 6 एंड दिस एंटायर शुड बी इक्वल टू द वर्क डन विच इज 72 यूनिट्स, ऐसे ही करते हैं ना हम लोग एलसीएम मेथड में। ठीक है, अब देखो सब कुछ को मेरे को एक वेरिएबल पे लेके आना है, तभी तो मैं सॉल्व कर सकता हूं ना, सो कि मैं क्या करूंगा, सिंस यहाँ पे P प्लस टू क्यू प्लस आर 7 है, सो मैं सब कुछ को Q के टर्म्स में लेके आने का कोशिश करता हूँ। P प्लस क्यू प्लस आर कितना होगा यहाँ से, इसको मैं अगर थोड़ा मोल्ड करूं, P प्लस टू क्यू प्लस आर इज कमिंग एज 7, सो P प्लस क्यू प्लस आर विल बी नथिंग बट 7 - Q, मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, सो मैं इसको पूरे को 7 - Q पे लिख देता हूँ एक वेरिएबल पे, इंटू 6 प्लस P प्लस आर, P प्लस आर कितना होगा, 7, P प्लस आर इज नथिंग बट 7 - 2Q। ठीक, सो दिस इज 7 - 2Q इंटू 6 प्लस आर इंटू 6, आर को मैं क्या लिख सकता हूं, आर इज यहां से मैं कर सकता हूं Q प्लस आर इज 4, सो आर इज 4 - Q इंटू 6 विच इज 72। ठीक है, क्लियर, सब कुछ मेरे क्यूब के टर्म्स में आ गया, अब लाइफ मेरा बहुत इजी हो गया, क्यूब से निकालूंगा एंड इफ आई गेट क्यू आई विल गेट पी, आई विल गेट आर फ्रॉम दीज इक्वेशंस। ठीक, सो लेट्स सॉल्व इट, 42 - 6Q प्लस 42 - 12Q प्लस 24 - 6Q, दिस इज 72। ठीक है, मैं इसको इस साइड लिख लेता हूँ, सो आई गेट 6Q 18 24Q, 24Q एक साइड लेके आ गया एंड दिस साइड 42 24 विच इज 62 66 -6 36, सो दिस इज 36, सो Q इज नथिंग बट 3/2, सिंस Q मेरा आ गया सो P भी आ जाएगा, P कितना हो जाएगा फिर, P विल बी P विल बी 3 - 3/2 विच इज 3/2 यूनिट्स पर डे, दिस इज, इसका ये क्या है, 3/2 यूनिट्स पर डे, सॉरी 3/2 यूनिट्स पर डे, एंड यहां से आर भी आ जाएगा मेरे को ये वाली इक्वेशन से, 4 - 3/2, 4 - 3/2 विच इज 5/2। ठीक, सो आर भी मेरे को आ गया, सो आर आ गया, पी आ गया, क्यू आ गया, सब आ गया मेरे पास, सो पी प्लस क्यू प्लस आर कर दो, सो पी प्लस क्यू प्लस आर, लेट मी जस्ट रब दिस पार्ट, सो P प्लस क्यू प्लस आर क्या हो जाएगा, P प्लस क्यू प्लस आर विल बी नथिंग बट 5/2 3/2 4, 4 प्लस 4 प्लस दिस 3/2, so P is 3/2, 3/2 3, 3 plus 5/2, so this is 11/2, 11/2 एंटर हो गया, सो P प्लस क्यू प्लस आर आ गया मेरे को, सो अभी क्या बोला, हाउ मेनी डेज वुड P प्लस क्यू प्लस आर वर्किंग, सो P क्यू एंड आर वर्किंग टुगेदर वुड कंप्लीट द वर्क, सो कितना टाइम लगेगा बताओ, एंटायर वर्क डन कितना है, 72, 72 डिवाइड बाय P प्लस क्यू प्लस आर विच इज 11/2, so this comes as 144/11, 144/11।
सो बी आंसर हो गया मेरा। क्लियर? इसलिए मैं हमेशा एलसी मेथड से ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करता हूँ। एलसी मेथड से क्या होता है कि मेरे को क्लैरिटी रहता है, सब कुछ मिला के मेरे को एंटायर वर्क डन का करना है। एंड ऑल्सो आई डोंट हैव टू डील विद फ्रैक्शंस। करेक्ट? सो जहां जहां फ्रैक्शंस हम लोग अवॉइड कर सकते हैं वहां वहां अवॉइड करेंगे। ठीक है, दिस वाज वेरी गुड क्वेश्चन। एंड काफी अच्छा कॉन्सेप्ट, अच्छा कॉन्सेप्ट कवरेज होता है ये क्वेश्चन करने से, क्योंकि दिस इज अ वेरी कैट लेवल क्वेश्चन। मतलब ऐसा टाइप का क्वेश्चन कैट में काफी बार आया है। ठीक है, और इस बार भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। या, क्वेश्चन नंबर 13। Okay, so question number 13 says 12 years ago the total age of a family of 10 members was 300 years. ठीक है, 12 years ago the total age of family of 10 members was 300 years. Yes, so 12 साल पहले द टोटल एज ऑफ फैमिली वाज 10 मेंबर्स। ठीक है, सो 300 ईयर्स से वो लोग चालू किया, मतलब सबका एज मिला के दैट इज 300 ईयर्स। ठीक है, 12 साल पहले। अभी 5 years later 1 member passed away at the age of 72। अब यहाँ पे क्या एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, 5 years later मतलब क्या है कि सबका एज 5 5 ऐड हुआ, सबका एज 5 5 ऐड होगा। ठीक है, तो सबका एज अगर 5 5 ऐड होगा, क्योंकि 5 साल बीत गया है तो सबका एज ऐड हो रहा है। यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ, दिस 300 इज नथिंग बट टोटल एज ऑफ द फैमिली मेंबर ऑफ 10, लाइक टोटल एज ऑफ 10 मेंबर्स। फैमिली में जितने भी लोग हैं 10 है, बड़ा फैमिली है थोड़ा। सो ठीक है, सो 300 से मतलब अब 5 साल बाद सबका एज ही 5 ऐड होगा, सबका एज 5 ऐड होगा, तो 10 मेंबर्स का सबका ऐड 5 होगा, तो कितना हो गया, 50 ऐड होगा। सो दिस इज 5 into 10। सो 350 होना चाहिए आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स। ठीक, आफ्टर 5 ईयर्स 350 होना चाहिए। बट क्या हुआ, 1 मेंबर पास्ट अवे एट द एज ऑफ 72 ईयर्स। सो ये 350 तो हुआ, बट उसके साथ साथ ही एक -72 भी होगा, क्योंकि वो दैट मेंबर गॉट पास्ट अवे। सो दिस बिकम्स 288। इसके साथ एंड अ चाइल्ड वाज बोर्न इन द सेम ईयर। सो अगेन 10 मेंबर्स थे, वहां से एक माइनस हुआ, बट फिर से एक जन का बर्थ हो गया। सो दिस इज अगेन 10 ही रह गया। ठीक है, 288 हो गया आफ्टर 5 ईयर्स। सो आफ्टर 5 ईयर्स द नंबर बिकम्स 288, क्योंकि -72 करना पड़ा, क्योंकि दैट मैन पास्ट अवे। अनदर 4 years later, okay, after again 4 years, after 4 years 1 member passed away at the age of 68। तो अब 4 साल अलग होगा, तो वैसे ही जैसे मैं +5 into 10 किया था, यहाँ पे भी वही करूंगा, +4 into 10, क्योंकि नंबर ऑफ मेंबर्स तो अभी भी 10 ही है, न्यू बॉर्न हुआ था ना एक जन का। सो दिस इज अगेन +4 into 10, सो दिस कम्स एज 328, 288 +40। एंड अनदर member passed away, so 328 minus 68, which comes as 260 आफ्टर 4 ईयर्स। एंड अनदर चाइल्ड वॉज बोर्न। सो पहले 10 मेंबर थे, वहां से एक मेंबर माइनस हुआ 68 ईयर्स वाले, फिर से एक जन का बर्थ हो गया, सो अगेन 10 हो गया। अब पूछा है कि द फैमिली, हाँ बोल दे, फैमिली स्टिल 10 मेंबर्स ऑब्वियसली। सो व्हाट इज द करंट एवरेज एज ऑफ द फैमिली? कितने साल चला गया? पहले क्या बोला था, 12 years अगो, मतलब 12 साल पहले। उसके बाद 5 साल, उसके बाद 4 साल, तो बचा कितने साल अब करंट होने के लिए? 3 साल बचा। सो आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स, सो आफ्टर 3 ईयर्स में क्या होगा, सबका एज +3 ऐड होगा इंटू 10, क्योंकि 10 मेंबर्स है। सो दिस बिकम्स 290। सो आवर आंसर बिकम्स 290। ठीक, दिस वाज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट कि सबका एज ही ऐड होते जाएगा। ठीक है, सबका एज ऐड होते जाएगा मेंबर्स का। ठीक है, गुड क्वेश्चन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, दिस वाज अ कैट क्वेश्चन, कैट 24 क्वेश्चन एक्चुअली। एवरीवन प्लीज ट्राई फॉर 2 minutes, 2 to 3 minutes. Okay, let's start with this one. A bus starts at 9 a.m. and follows a fixed route every day. Okay, so 9 बजे बस छोड़ता है and it follows the fixed route. One day travel at a constant speed of 60 km/h and reach its destination 3.5 hours later than its scheduled arrival time. So let us take the scheduled arrival time as t. ठीक है, so उसने t plus 3.5 hours में reach किया होगा। सो डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, 60 km/h पे गया है, तो 60 × t + 3.5, दिस इज द एंटायर डिस्टेंस दैट ही हैड कवर्ड। ठीक है, यही पूरा डिस्टेंस हो गया छोड़ने से लेके डेस्टिनेशन तक। आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस। सिंपल।
Next day, it traveled at two-third of its route in one-third of its scheduled arrival time. So two-third route, 2/3 distance he had covered in t/3 time. ठीक है? So, and the remaining part of the route, which is अगर two-third distance cover हो गया तो remaining part of the route कितना हुआ? 1/3d. Remaining part of the route at 40 किलोमीटर पर आवर टू रीच जस्ट ऑन टाइम, मतलब टोटल टाइम इसको कितना लगा है? जस्ट ऑन टाइम रीच कर गया, मतलब नो लेट नो अर्ली, सो टी हो गया. सो वन थर्ड डिस्टेंस कितने में ट्रेवल करेगा? पहले t/3 चला गया, उसके बाद 2t/3 होगा. करेक्ट? करेक्ट. सो अगर मैं इसको ऐसे करके सोचूं कि वन थर्ड डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया 2t/3 टाइम पे, एंड स्पीड कितना में कवर किया है? 40 किलोमीटर पर आवर पे. सो 40 किलोमीटर पर आवर पे अगर ये ट्रेवल करता है 2t/3, तो ये डिस्टेंस कितना कवर करता है? d/3. ये टोटल डिस्टेंस कितना है? d. सो इसको अगर मैं ये डिवाइड बाई 3 कर दूं तो ये आ गया, एंड दिस इज नथिंग बट 40 किलोमीटर पर आवर इंटू इंटू कितना कितना टाइम चला था? 2t/3 चला था. 40 किलोमीटर पर आवर पे अगर वो 2t/3 टाइम तक चलता है, देन ही कवर्स वन थर्ड ऑफ द डिस्टेंस. दिस एंटायर पार्ट वाज d डिस्टेंस. सो मैं डिवाइड बाई 3 कर दिया. सो d/3 डिस्टेंस कब कितना d/3 डिस्टेंस वो जा रहा है कब? 40 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा है, एंड फॉर 2t/3 टाइम. सो दिस कम्स एज 20 प्लस 3.5 into 20 is 70. So 80 t/3. So t comes as this is 20 by 3.5. So 10.5 hours. So t is basically nothing but 10.5 hours. मेरे को क्या पूछा है? The scheduled arrival time of the bus. बस कब छोड़ा था? 9 बजे, 9 am. 9 am के साथ मैं 10.5 hours ऐड कर दूंगा. So this is nothing but 7:30 p.m. A very doable question. Last year, this came in CAT, and this was a very doable question. If you just know the basics and if you can solve it very fast within 1 to 1.5 minutes, if you just have got this idea कि d/3 डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है 2t/3 टाइम पे, गिवन 40 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा है, एंड डी ऑलरेडी मेरे को पहले गिवन था, तो मैं उसको डिवाइड बाई 3 कर दूंगा d/3 फाइन करने के लिए. क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. ओके. So this question says a coaching institute has two batches, morning batch and the afternoon batch. Okay, so it has two batches, morning batch and afternoon batch. Initially, the number of students in the morning and afternoon batches was in the ratio 13:9. ठीक है? Morning and afternoon का initial ratio क्या था? 13:9. After n students transferred from morning to afternoon batch, morning to afternoon में let's suppose 13:9 है, तो मैं पहले इसको क्या लिख देता हूँ? 13x and 9x लिख देता हूँ. एग्जैक्ट वैल्यूज में कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को एग्जैक्ट वैल्यूज के साथ ही खेलना है, क्योंकि ये सब नंबर्स मेरे को दिख रहा है 153 n स्टूडेंट्स, तो मेरे को नंबर्स के साथ खेलना पड़ेगा. सो दैट्स व्हाई आई रोट 13x 9x पहले ही. आफ्टर n students transferred from morning to afternoon batch, okay, so n students have been transferred to morning to afternoon batch. The morning to afternoon ratio becomes 19:14. So 13x से n 13x से, sorry, let me just rub it. 13x पहले था, वहां से n स्टूडेंट्स गॉट ट्रांसफर्ड, सो यहां से -n हो गया, एंड ट्रांसफर कहां पे हुआ? आफ्टरनून बैच पे. सो वो आफ्टरनून बैच इनिशियली कितना था? 9x, अभी कितना हो जाएगा? +n, क्योंकि n स्टूडेंट्स यहाँ पे एंड दिस रेशियो बिकम्स 19/14. सो यहाँ पे यहाँ ये सॉल्व करने से मेरे को x और n का रिलेशन आ जाएगा. सो 14 into 13 is 140, 182 minus 14n is 19 into 9, 171x plus 19n, 19n. So this is 33n, 182x, sorry, yes. So 33n comes as 182 plus 171. So this is 353, 352, 353. Yes, 353x. When x, so x by n, सॉरी सॉरी सॉरी, 353 क्यों होगा? इस साइड जगह माइनस होगा तो, सॉरी सॉरी सॉरी, सॉरी. सो दिस कम्स एज 11x is 33n. So x is basically 3n. So x comes as 3n from this equation. ठीक है? क्लियर? सब अब नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं. देखो, ऐसा जब बड़ा वर्ड प्रॉब्लम्स होगा ना, कभी भी मैं पूरा पढ़ने के बाद फिर नोट डाउन करने नहीं लगूंगा. मैं जो भी पढ़ा उसके बाद आई विल मेक अ सेंस आउट ऑफ इट. ठीक है? देन आई विल मूव फॉरवर्ड.
क्योंकि पूरा पढ़ लूंगा मेरे को फिर भी याद नहीं रहेगा एंड फिर से मेरे को वापस जाना पड़ेगा, तो उससे अच्छा है कि भाई एक एक करके मैं लिखते जाऊं। ठीक है। Subsequently, 153 new students applied and were admitted. They joined the morning and the afternoon batches in the ratio 6 is to 11. So 153 now new joinees है, and they joined morning and afternoon batch in the ratio 6 is to 11. So सीधा सीधा इनको split कर दो 6 is to 11 में. So morning batch में कितना होगा? 6 by 6 plus 11, 6 by 17 into 153. So this is 954. Afternoon batches में कितना हो जाएगा? 11 by 17 into 153, which is 9 into 11, 99. ठीक। सो 99 स्टूडेंट्स हो गए आफ्टरनून बैच में। तो इन ठीक है। सो मॉर्निंग बैचेस में और प्लस 54 होगा, आफ्टरनून बैचेस में ऑन प्लस 99 होगा। आफ्टर दिस एडमिशंस द रेशियो ऑफ मॉर्निंग एंड द आफ्टरनून स्टूडेंट्स बिकेम 24 is to 19। ठीक है। सो इनिशियली कितने थे? 13x माइनस 9 थे, मतलब अभी उसके बाद फिर और ऐड हुए। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा। ओके, सो आई विल जस्ट रब दिस पार्ट। I will just rub this part. I just have to use this x equal to 3n and just solve it. My question is almost done. So in before the addition was done, that is 54 students to morning and 99 to this, the number of students in the morning batch were 13x minus n. Now after 54 it becomes plus 54. Similarly, पहले इसमें कितने थे? 9x plus n, अभी और 99 ऐड होगा, इसके बाद रेशियो कितना हो गया? 24 is to 19. So I will just solve it now. ठीक। अब n, सो एवरीथिंग आई कैन, सिंस मेरे को n का वैल्यू निकालना है, सो x को मैं n में ट्रांसफर कर दूंगा। सो 13x इज, x इज 3n, सो दिस बिकम्स 39n। 39n माइनस n प्लस 54 बाई 9x, 9 इंटू x इज 3n, सो 27n प्लस n प्लस 99 विच इज 24 बाई 19। सो दिस इज 38, 38 इंटू 19। So this is 38 into 19, which is, just let me use my calculator. But so 38 into 19, which is 722, 722 n plus 54. 54 into 19, 54 into 19 is 1026 plus 1026. This is nothing but 28 into 24 into 24 is 672, 672 n plus 99 into 24, 99 into 24, which is 2376, 2376। ओके, सॉरी, 2376। ठीक है, तो यहां से मैं अगर सॉल्व करूंगा, सो आई विल गेट 722n minus 672n, which is 50n. So 50n will be equal to 2376 minus 1026, which is 1350, 1350। So easy हो गया, 135 divided by 5, which is 27। So n का वैल्यू आ गया मेरे पास, सॉरी, सो एन का वैल्यू मेरे पास आ गया 27, यहां से सॉल्व करके। सो द वैल्यू ऑफ एन वी गॉट एज 27। ठीक है। सो मैंने क्या किया, पहले वर्ड प्रॉब्लम का क्या नियम है, बड़े क्वेश्चंस का रेशियो प्रोपोर्शन हो गया या तो परसेंटेज हो गया, ये सब का, या तो टाइम एंड वर्क भी हो गया, इन सब का वर्ड प्रॉब्लम्स बड़े बड़े होते हैं कभी कभी। सो इसको मैं क्या करूंगा, एक सेंटेंस पढ़ूंगा, आई विल मेक अ सेंस आउट ऑफ इट, देन ओनली आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंड देन अगेन द नेक्स्ट। ठीक है, ठीक, दिस वाज अ गुड वन। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Sorry. Yeah, I hope everyone has gone through this question. So, what does this question say? Suman's coin bag has a total of 150 coins in three denominations, 1, 2, and 5. ठीक है, तो 150 coins है, 150 is the total number of coins, split in rupee 1, 2, and 5. ठीक है, I don't know the ratio right now, so I'm just writing 150 coins है with rupee 1 coins, rupees 2 coins, and rupees 5 coins। ठीक है, with at least one coin of each denomination, सबका greater than equal to 1 होगा ही होगा। ठीक है, the total value of rupee 1 coins, okay, let's suppose कि x 1 rupee coins है, y 2 rupee coins है, and z 5 rupee coins है। So I hope everyone now knows the difference between number of coins and the value of coins। So number of coins is कि उस वैल्यू, उस रुपीज के कितने सारे कॉइन्स, बट वैल्यू इज जब वो
अमाउंट इनटू नंबर ऑफ कॉइन्स होता है, दैट गिव्स अस द वैल्यू. सो सपोज वाई नंबर ऑफ कॉइन्स है मेरे पास 2 रुपीज के, बट वाई नंबर ऑफ कॉइन्स है, बट एक कॉइन का दाम कितना है 2 रुपीज. सो वाई कॉइन्स का वैल्यू कितना हुआ 2 into y. ठीक है, तो ये यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे. द टोटल वैल्यू ऑफ रुपीज 1 coins इज एटलीस्ट 50% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन्स इन द बैग. ठीक है, सो टोटल वैल्यू ऑफ दिस, सो टोटल वैल्यू ऑफ ₹1 coins is x only. 1 into x is x. It should be at least 50%, means 0.5 into the total value of the coins in the bag. Total value कितना होगा x plus 2y plus 5z. इसका वैल्यू हो गया 2y, इसका वैल्यू हो गया 5z. ठीक है, इफ देर आर 23 रुपीज 5 coins in the bag and the total value of the ₹2 coins. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है, बट z का वैल्यू मेरे को दे दिया है 23. तो z का वैल्यू मेरा 23 दे दिया है, तो दैट मेक्स माई लाइफ इजियर. So x greater than equal to 0.5 into x plus 2y plus 23 into 5, which is nothing but 115. So 0.5 this is nothing but half. So 2x greater than equal to x plus 2y plus 115. So that gives me x greater than equal to 2y plus 115. So x greater than 2y plus 115. ठीक है, यहां से मेरे को ये इक्वेशन आ गया. नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोला है मेरे मेरे को कि एक और मेरे को पहले क्या है कि 150 नंबर ऑफ कॉइन्स दे दिया है. सो x प्लस वाई प्लस जेड दैट इज नथिंग बट 150. ठीक, एवरीवन एग्रीज. यहाँ पे z का वैल्यू 23 है, सो x प्लस वाई प्लस 23 इज 150. सो 150 माइनस 23 विच इज 127, सॉरी 127. ठीक, सो x प्लस वाई का वैल्यू 127 है, एंड यहाँ पे एक और मेरे को मिला है कि x ग्रेटर देन 2y. सो इसको ऐसे लिखो, x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 115. मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको. ठीक, x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 115. सो ये इक्वेशन एंड ये इक्वेशन को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं, 1 - 2 अगर मैं करूं, सो एक चीज गौर करो, x माइनस 2y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 115 है. अब मैं 1 - 2 अगर करूंगा, सिंस इसका वैल्यू ग्रेटर देन 115 है, अगर मैं नेगेटिव करूंगा, जितना इसका वैल्यू बढ़ेगा, जितना 115 के बाद 116 होगा, 117 होगा, सो डिफरेंस विल रेड्यूस. करेक्ट. सो इसको दोनों को अगर मैं माइनस करता हूं, सो दैट विल बी लेस देन इक्वल टू 127 माइनस 115. आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड्स, क्योंकि यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, इसका स्मॉलेस्ट वैल्यू ले रहा हूं 115. सो 127 माइनस 115 अगर मैं कर, चलो मैं लिख के समझाता हूं. इन दोनों को अगर मैं माइनस करूं तो x गेट्स कैंसल्ड एंड दिस इज 3y and this side becomes 127 minus 115 which is 12. अब ग्रेटर देन इक्वल टू होगा या लेस देन इक्वल टू होगा, कैसे समझ में आएगा. अब एक बात सोचो कि 115 इज द लीस्ट अमाउंट, लीस्ट वैल्यू ऑफ x माइनस 2y. उसका नेक्स्ट वैल्यू 116 भी हो सकता है, 117 भी हो सकता है. अगर जितना वैल्यू इसका बढ़ेगा, 1 - 2 करूंगा तो वो क्या होगा, 12 से लेके 11 होगा, 11 से लेके 10 होगा. ठीक, सो 12 इज द हाइएस्ट वैल्यू, सो इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 12. So y should be less than equal to 4. So y का मेरे पास वैल्यू आ गया कि it should be less than equal to 4. अब एक और मेरे को इंटरेस्टिंग चीज बोला है कि वैल्यू ऑफ 2 रुपी कॉइन इज एटलीस्ट 3% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन्स इन द बैग. ठीक है, सो अब मैं y इक्वल टू 4 को लेके देखता हूं कि वो ग्रेटर देन 3% हो रहा है कि नहीं. ठीक है, सो लेट्स टेक y इक्वल टू 4. z का वैल्यू मेरे पास 23 दिया ही गया है, सो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 150 माइनस दिस 4 माइनस 23 विच इज 27. So 1 2 3 I guess, no, 127, yes 123. So x का वैल्यू आ गया मेरे पास 123. So अब मैं देखता हूँ कि वैल्यू ऑफ 2 रुपी कॉइन इज ग्रेटर देन 3% और नॉट. कैसे देखूंगा, सो वैल्यू ऑफ 2 रुपी कॉइन्स विल बी 2 into 4 एंड दैट विल बी divided by the value of all the coins which is x, which is 1 rupee coin, which is 123 into 1 plus 2 into 4 is 2 rupee coins का value plus 5 rupee coins का value is 23 into 5. And I will do into 100 to find the percentage. ठीक, so ये percentage कितना आएगा, so this comes something around 3.2%. so this is greater than 3%, so this satisfies my this. अब अगर मैं देखूंगा कि y इक्वल टू 3 बिठा के मैं अगर देखूंगा, सो अगर मैं y इक्वल टू 3 बिठाऊंगा सिंस इट इज लेस देन 4, सो तब मैं देखूंगा कि दिस वैल्यू गोज लेस देन 3%. सो दैट्स वाई y इक्वल टू 4 विल बी माई फाइनल आंसर.
y इक्वल टू 4 विल बी माई फाइनल आंसर। क्यों? क्योंकि 4 मैं बिठा रहा हूं तो 3% के ऊपर आ रहा है, बट जैसे ही मैं 3 बिठा रहा हूं ना, यू कैन ऑल कैन चेक एट योर एंड, 3 मैं बिठाऊंगा तो दैट विल बी लेस देन 3%। ठीक है, सो ओनली 4 के लिए ही वो ग्रेटर देन 3% का वैल्यू, ग्रेटर देन 3% का जो क्राइटेरिया है दैट सेटिस्फाई होगा। सो y इक्वल टू 4 विल बी माई आंसर। दिस वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स का असेंबल है यहाँ पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। ओके, लेट्स सी व्हाट दिस क्वेश्चन सेज। अ वेजिटेबल वेंडर हैज अ टोटल ऑफ 312 केजी वेजिटेबल्स। ठीक है, तो सब मिला के उसके पास 312 केजी वेजिटेबल्स है। ठीक, कंसिस्टिंग ऑफ पोटैटोज, ऑनियंस, टोमेटोज एंड कैरेट्स। ठीक है, सो पोटैटोज है, ऑनियंस है, टोमेटोज है, कैरेट्स है, काफी कुछ है। ठीक है, काफी अच्छा शॉपिंग किया है। So the ratio of quantities of potatoes to onions. So it is potatoes to onions is 4:3, and the quantity of tomatoes equals the quantity of onions. Potatoes, onions, the quantity of tomatoes equals the quantity of onions. So ये अगर ये है तो this is also 3:3 will be. ठीक, ऑनियंस इक्वल टू टोमेटोज बोला है ना, सो पोटैट अगर मैं लेट सपोज P:O को गिवन है 4:3, सो P का वैल्यू होगा 4x, O का वैल्यू होगा 3x। करेक्ट, नंबर ऑफ पोटैटोज इज 4x, नंबर ऑफ ऑनियंस इज 3x, एंड ऑनियंस इक्वल टू टोमेटोज बोला है तो ऑनियन इक्वल टू टोमेटो कितना होगा? 3x ही होगा। अब क्या बोला है? द रिमेनिंग आर कैरेट्स। सो कैरेट्स कितने हो गए? टोटल कितने हैं? 312। सो 312 से मैं सबको माइनस कर दूंगा, पोटैटोज, ऑनियंस, टोमेटोज को। सो दिस इज 4x, 3x, 3x, सो दिस इज 10x। सो कैरेट्स भी मेरे को मिल गया 4312 माइनस 10x। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ। द वेंडर सेल्स 51 kg ऑफ पोटैटोज। सो लेट्स सी अनसोल्ड कितने कितने हो। ठीक है, 51 kg potatoes are sold. So potatoes left is 4x minus 51. Onions 24 kg. पहले कितना? 3x, 3x minus 24. Tomatoes कितने हुए? Tomatoes is 3x minus 30. 30 have been sold. So 3x minus 30. Correct? And half the quantity of carrots are sold. तो half बचा, half sold हुआ तो half ही बचा होगा। पहले कितना? 312 minus 10x. So उसका half sold हो गया तो half बचा। 312 minus 10x होल बाई 2। ठीक है, सो दीज आर ऑल द अनसोल्ड वंस। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ क्वांटिटीज ऑफ अनसोल्ड पोटैटोज टू अनसोल्ड कैरेट्स इज 5:4। सो अनसोल्ड पोटैटोज टू अनसोल्ड कैरेट्स इज 5:4। बस इसको सॉल्व कर लो, सीधा सा है। 4x minus 51 डिवाइड बाई 312 minus 10x होल डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 5/4। आफ्टर सॉल्विंग यू विल फाइंड दैट x का वैल्यू आ जाएगा 24। सो सिंस x का वैल्यू 24 आ गया, सो यू कैन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ ऑल द अनसोल्ड वेजिटेबल्स। कैसे? 24 पुट कर दो सब जगह, मैं पहले अनसोल्ड लिख के ही रखा हूं। 24 into 4 is 96, 96 minus 51 is 45। So 45 unsold potatoes, 24 into 3 72, 72 minus 24 is 48। So 48 kg are unsold onions। ठीक, next tomatoes 3 into 24 72 minus 30 42, and this is half। So 312 minus 10x 240, 240 means 72, 72 by 2 is 36। So you have to just add all this। So 45 plus 48 plus 42 plus 36 कितना हो जाएगा? 48 plus 42 is 90, 90 145, 135, 135 36 is 171। So my final answer will be 171। This was an easy question, A level question, which should be attempted if comes in CAT. No doubt about that. This question should not be left during actual CAT। Very 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 easy question, and this kind of questions are expected। ठीक है, let's go to the next one। Okay, let's start with this one now। Next question। A riverside town operates boats as courier services to nearby towns along the river। ठीक है, ये वो बोट है जो ये कर रहा है, कुरियर सर्विस कर रहा है along the river, along the streams और river जो भी है। ठीक है, द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ बोट ए इन स्टिल वाटर, बोट ए स्पीड इज टू बोट बी स्टिल इन स्टिल वाटर इज टू बोट इज टू स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ओके, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। सो वीएस और स्ट्रीम को मैं मोस्टली वीडब्ल्यू लिखता हूँ फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। ठीक है, सो दिस इज 15 is to 14 is to 10। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट ए, स्पीड ऑफ बोट बी इन स्टिल वाटर, एंड स्पीड ऑफ व्हाट?
stream of water. If the difference between the speeds of boat A and B is 2 km per hour, okay, ठीक है. So it is ratio is 15:14. डिफरेंस कितना है? 1 का. So इसको डिफरेंस कितना बनाना है? 2 का. So मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा? 2 से. So this becomes 30:28. हो गया 30 and 28. एंड दिस बिकम्स इंटू 2. यहाँ पे भी करूंगा, सबको इंटू 2, सबको इंटू 2, सबको इंटू 2. सो दिस इज 20. सो वी ए मेरे को मिल गया 30, वी बी मेरे को मिल गया 28 एंड वी डब्ल्यू मेरे को मिल गया 20. मैं क्या किया कि रेशियो का डिफरेंस कितना था? 1 का. उसको 2 बनाना है, सो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं. तो सबको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर मेरा आ गया. देन बाय द टाइम बोट बी कवर्स 192 किलोमीटर अपस्ट्रीम, हाउ मेनी कंप्लीट ट्रिप्स कैन बोट ए मेक ओवर डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड बैक. ठीक है. तो मैं पहले देखना पड़ेगा कि बी कितना टाइम लगा रहा है 192 किलोमीटर अपस्ट्रीम के लिए. कितना टाइम लगेगा बी? B will take 192 किलोमीटर अपस्ट्रीम, मींस 192 इंटायर डिस्टेंस डिवाइड बाय अपस्ट्रीम है मतलब अगेंस्ट द फ्लो. सो VB माइनस VW होगा. सो 192 बाय VB इज 28, VW इज 20. सो 192 बाय 8 विच इज 24 आवर्स. ठीक है. सो नाउ आई हैव टू फाइंड कि 24 आवर्स में वो कितना कंप्लीट ट्रिप करेगा, ए कितना कंप्लीट ट्रिप करेगा. ठीक है, बेसिकली यही है, सिंपल. 100 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड बैक है. सो एंटायर ट्रिप मतलब है डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम. ठीक है. सो ए डाउन स्ट्रीम कितना टाइम लगेगा उसको? 192 किलोमीटर ही है, सॉरी 100 किलोमीटर दिया है. ओके 100 किलोमीटर दिया है. सो 100 किलोमीटर दिया है तो 100 डाउन स्ट्रीम में क्या होगा? वीबी वी ए प्लस वीडब्ल्यू. सो 30 प्लस 20, सो 50. सो ही इज टेकिंग 2 आवर्स फॉर डाउन स्ट्रीम. अब अपस्ट्रीम के लिए क्या होगा? आई विल जस्ट राइट इट ओवर हियर. अपस्ट्रीम के लिए डी का क्या होगा? इट विल बी 100 डिवाइड बाई अपस्ट्रीम मतलब अगेंस्ट द फ्लो, सो माइनस. सो वी ए माइनस VW विच इज 30 माइनस 20 विच इज 10 आवर्स. सो एंटायर जर्नी टी का कितना हो गया? टी ए का एंटायर जर्नी इज 12 आवर्स. अपस्ट्रीम इज 10 आवर्स, डाउनस्ट्रीम इज 2 आवर्स. सो 10 प्लस 2 12 आवर्स. सो ही टेक्स 12 आवर्स फॉर वन कंप्लीट ट्रिप. टोटल टाइम कितना चलेगा वो? 24 आवर्स. तो कितना ट्रिप्स कंप्लीट करेगा? बोलो, इजी. 24 divided by 12. So 2 complete trips A will make. So answer to this question is 2. It's a very easy question. This type of question should not be left behind in the exam. ठीक है, देख के घबराना नहीं है कि रेशियो दे दिया, स्पीड ऑफ बोट है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, तो उससे घबराना नहीं है. दिस इज अ क्लियर फंडामेंटल क्वेश्चन. ठीक है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. Everyone, please try this for 2 minutes and then I will show the solution. Okay, I hope everyone has read it. This is the last question of today's marathon. Okay, so let's get started. Zan deposits rupees 50,000 in scheme A. Okay, so 50,000 को मैं कैसे लिखता हूँ? 50K करके लिखता हूँ. I don't waste time in writing all the zeros. I just write K. Okay, 50K in scheme A which offers 8% per annum. ठीक है, तो 8% per annum दे रहा है. Compounded annually. ठीक है, तो CI. At the end of each year, he withdraws the interest earned and immediately invests it in scheme B, which offers 10% per annum. मतलब यहाँ पे 1 साल बाद कितना देगा? 1 ईयर बाद कितना देगा इसका इंटरेस्ट? इंटरेस्ट कितना होगा? 8% है. 8% 50K का कितना होता है? 4K. सो एक्चुअली कितना होगा? 50 अमाउंट कितना हो जाएगा? मैं चलो पूरा स्टेप ही लिख देता हूँ. अमाउंट कितना हो जाएगा? 1 प्लस R/100 विच इज 8/100. सो 50 इंटू 1.08 विच इज 54K. ठीक है. 1 साल बाद जो 50K है वो 54K बन जाएगा. बट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये 54K में 50K आपका पहले था, अभी 4K इंटरेस्ट अर्न हुआ है. सो ये इंटरेस्ट दे विल गिव इट टू बी स्कीम. बी स्कीम में क्या होगा? 10% कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा. ठीक है, ऐसे प्रोसेस है. Zan continues this process for 3 years. What is the total amount that Zan has at the end of 3 years? तो मेरे को अमाउंट चाहिए एट द एंड ऑफ 3 years, उसके पास कितना पैसा बन गया. ठीक है. अब सोचो आफ्टर फर्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट आया, ही गेव इट बैक टू बी. ठीक है, तो 4K बी में दिया. अब टाइमलाइन समझो. फर्स्ट ईयर के अंत में ही गेव इट टू बी. सो बी में जो फर्स्ट ईयर के अंत में जो इंटरेस्ट दिया वो कितने साल तक रहा? 3 इयर्स के एंड तक. मतलब फर्स्ट 1 to 2 एंड 2 to 3. करेक्ट. सो सो यहाँ पे 4K जो है 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे कितने साल तक का अमाउंट मेरे को एक बार में निकाल सकता हूँ? 2 इयर्स तक का वहां पे रखा है. सो आई विल फाइंड डायरेक्टली 2 इयर्स का.
सो 4k इंटू 1 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर, सो दिस इज 4.84k। सो पहला जो साल का जो अमाउंट, पहला जो साल का इंटरेस्ट था जो बी में लगा दिया, आफ्टर 2 इयर्स उसका वैल्यू कितना हो गया 4.84k। चलो वहां तक मेरा क्लियर हो गया। अब एक और चीज है, फर्स्ट ईयर का हो गया, सेकेंड ईयर में भी तो वो फिर से पैसा आएगा। सेकेंड ईयर में कितना आएगा, सेकेंड ईयर में फिर से जो ए स्ट्रीम से आएगा वहां से फिर से 54k आएगा, फिर से यहां से जो 4k होगा वो बैक टू बी देगा, एंड बी विल आफ्टर 1 ईयर होगा, क्योंकि सेकेंड ईयर के एंड में मेरे को ये पैसा मिला एंड सेकेंड ईयर के एंड में मैं बी को दे दिया। अब थर्ड ईयर के एंड में कितना होगा बी का वैल्यू, क्योंकि वो तो 4k दिया है, 4k आफ्टर 1 ईयर मैच्योरिटी, सो 4k इंटू 1.1, सो दिस बिकम्स 4.4k आफ्टर 1 ईयर एट बी। ठीक, तो ये जो इंटरेस्ट मेरे को मिला था सेकेंड ईयर के एंड में, वो थर्ड ईयर के एंड में बी में डाल के कितना हो गया 4.4k। अभी फिर से ए में सेकेंड टू थर्ड ईयर में फिर से 50k तो है ही, तो 50k विल अगेन एट द एंड ऑफ 3 इयर्स गिव मी 54k। ठीक, बात समझो, सेकेंड ईयर के एंड में जो 4k था, मतलब 50 प्लस 4k, 4k में बी में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, तो 50k फिर से तो ए में किया ना, तो 50k फिर से ए में किया, तो वो एक साल फिर से गया, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर में फिर से 54k हो गया। सो एट द एंड ऑफ 3 इयर्स, एट द एंड ऑफ 3 इयर्स ए से मेरे को ए का कितना हुआ गया 54k, लास्ट ईयर का 50 डाला था तो इस साल 54 हो गया। बी से मेरे को कितना कितना मिला, एक ये अमाउंट मिला जो 2 साल पहले मैंने डाला था विच इज 4.84k, एंड एक साल पहले मैंने जो डाला था विच इज 4.4k। ठीक, सो दिस वैल्यू कम्स एज 9.22k। सो बी में रखने से मेरे को 9.22k मिला, एंड ए से 54k, क्योंकि पहला दो जो इंटरेस्ट था वो तो मैं बी में डाल दिया था ना, बस लास्ट वाला इंटरेस्ट मेरे को ऐड करना है। सो ए प्लस बी विल बी एंटायर विल बी 54k प्लस 9.22k which is 63.22k. So answer to this will be 63,220. So my answer is 63,220. Okay. So I guess this 20 questions will be very relevant to CAT तो this year as well. And ये type of questions काफी आ रहे हैं over the past years. And आप लोग अगर ये 20 क्वेश्चन अगर सही से कर लिए, then arithmetic में we will have a very strong hold. We are also launching our arithmetic PYQ series. So this marathon series as well as the PYQs will help you to evaluate yourself as well as to have a complete revision of all the topics, because हम लोग क्या कर रहे हैं ना, ज्यादा से ज्यादा सब टॉपिक्स का क्वेश्चंस को लेके आ रहे हैं जो एक्चुअली रिलेवेंट है। बहुत टफ क्वेश्चन मैं नहीं चाह रहा हूं कि आप लोग प्रैक्टिस करो, मैं चाह रहा हूं कि रिलेवेंट क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो जहां पे रिवीजन भी हो एंड आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो। ठीक है, सो विथ ऑल दैट we are ending the session right now. Okay, and all the very best for CAT. I will be coming up with another marathon which will be an algebra and also we are launching the arithmetic PYQ session as well. Okay, so stay tuned. If you haven't subscribed our channel yet, please do go and subscribe it for more such videos. And I promise you we'll be coming up with lot more good questions like this in the future, which will help you to prepare for your D-Day, which is the CAT day. Okay, thank you so much.